afternoon, everyone. Thank you for your time for connecting to this session. Um, Today, we are going to discuss on COVID-19. What do we need to know as dialysis technicians? So this is a very important topic, primarily trying to achieve the objective of while we still continue to serve uh, end-stage kidney patients on dialysis, uh, what precautions we need to know, what guidelines we need to be aware of while putting those into practice and keeping ourselves safe. Um, Before we start, let me introduce the panel of speakers to you. Uh, Let me start off with Dr. Amber. Dr. Amber Khaira has been trained from the prestigious All India Institute of Medical Sciences and worked with reputed hospitals like Mulchan MedCity, National Heart Institute, and VPS Rockland. He has recently been awarded the prestigious fellowship from American Society of Nephrology as recent as 2017. He has over 50 PubMed indexed international publications across various reputed journals. He has also written chapters in various textbooks of medicine and nephrology as an expert in the field. He has 13 international CME credits from McMaster's University, Canada. Currently, Dr. Amber Khaira is serving at the Akash Hospital, Dwarka National Heart Institute as a senior consultant nephrology and renal transplant. We welcome you, sir. Uh, our, our next speaker is Mr. P.K. Jain, who is a senior technical officer from Dharmshila Narayana Hospital. He was the ex-head technical officer, dialysis unit AIMS, New Delhi, and also the ex-president of Indian Association of Dialysis Technology. We welcome you, Mr. Jain. Next, Mr. Sadendra Sharma. He is a senior dialysis technologist at Lok Nayak Hospital. He was the ex-secretary, Indian Association of Dialysis Technology. We welcome you, Mr. Sharma. Thank you. Ms. Saloni Gupta has done her BSc in Home Science and PG DD from Lady Irwin College. She worked as a pediatric and cancer specialist dietitian at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, and a former renal dietitian at Davita, Delhi, covering multiple accounts like FMRI, PSRI, Adiva, Primus, Shanti Mukund Hospital. We welcome you, Ms. Gupta, onto this panel. So with that, the agenda for today's session looks like this. Next, we'll have the session started by Dr. Amber. We'll be talking on basically a sense of the topic, the session itself, the webinar itself, which is what we need to know as dialysis technicians. And next, Mr. P.K. Jain will be talking about safety of healthcare worker and patients during hemodialysis in COVID-19. Mr. Satendra Sharma will be covering the latest guidelines for dialysis during COVID-19. And lastly, Ms. Saloni Gupta is going to cover for diet in kidney patients. And then we'll open up the session towards the end for 10 minutes for a Q&A and discussions. So while a few more things about using this webinar forum is that you would notice 3 options in your dashboard. One is on the chat box. You will see a chat box. Number 2, you will have a Q&A tab, and the third is raise a hand. So we would encourage you to put your questions onto the Q&A tab, which will directly come to the panelists so that they can respond to you with their answers when they are free. So दोबारा से एक बार everyone welcome. एंड आप लोग ये टैब्स यूज कर सकते हैं Q&A के लिए. Q&A टैब यूज करिए अपने अपने मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स के जरिए. So with that, I would want to request Dr. Amber Khaira to come and start his presentation. Over to you, sir. Just a second. It's got hanged up.
Well, thanks for the kind introduction, Arjit, and it's been a pleasure. It's a pleasure here to be amongst the stalwarts of dialysis technicians. Mr. Jain, who has actually taught me a few things in life, and Mr. Satinder Sharma, although he's not directly taught me anything, but his son has taught me a lot of things. He's working with me. I would say he's a good colleague of mine, and I've learned a lot of things from Rahul. God bless you, sir, for producing such a wonderful child and technician in the field. So what I'm essentially going to talk about is what we should know as dialysis technicians. और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अधिकांश लेक्चर जो है या जो भी टॉपिक है इसको हिंदी में कवर करने की कोशिश करूं ताकि ये लोगों को आसानी से समझ में आए. तो let's begin like this. Every cough, fever, shortness of breath, and rhinorrhea is not COVID, but it should be managed as suspected COVID and tested for same immediately after discussion with nephrologist. और क्वारंटाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओगे. इट इज जस्ट अ मेजर. ये डिजीज जो है ये आगे फर्दर स्प्रेड नहीं हो. बहुत सारे टेक्नीशियंस मेरे बहुत सारे यूनिट्स में क्वारंटाइन हो चुके हैं, स्वस्थ होकर वापस निकल आए, किसी को कोई लक्षण नहीं निकला. बीमारी है, बीमारी फैल रही है. क्वारंटाइन से आप डरिए नहीं, एक्सपोजर से आप डरिए नहीं. अब बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप सेफ रहें, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं है तो कोई सेफ नहीं है. वर्ल्ड वाइड डेटा देखेंगे, 53 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं. अकेले यूएस में 16.5 लाख केस हो चुके हैं और 1 लाख के करीब डेथ हो चुकी है. इंडिया में आज का डेटा आंकड़े जो है 1,31,000 केस हैं, जिसमें करीब 4,000 के आसपास डेथ हो चुकी है. और ये आंकड़े हो सकता है सब कुछ साफ साफ नहीं दिखा रहे हो सकता है काफी सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स इस आंकड़े के इस पिरामिड के नीचे हो जो कि हमें मालूम भी नहीं है कितने. तो हमारे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम है, पर ये आंकड़े सरकार ने दिए और हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये बीमारी है, वैश्विक महामारी है, फैल रही है. तो कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है. इट इज कॉज्ड बाय, ये एक नोवेल कोरोना वायरस डिजीज है जिसमें अधिकांश लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है. और ये यूजुअली जो है बुखार के साथ, मेजॉरिटी को बुखार होता है, खांसी होती है, बॉडी एक्स होते हैं, मायल्जियाज होते हैं, थकान होती है, कुछ लोगों का लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी चला जाता है. अलग अलग लोगों को अलग अलग लक्षण होते हैं और आजकल कुछ केसेस ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें सीधे हार्ट अटैक या सीधे स्ट्रोक कनाडा में, स्पेशली कुछ रीजन कनाडा में ऐसा और अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका रीजन में ऐसे केसेस भी प्रेजेंट किए हैं. तो प्रेजेंटेशन बहुत वेरिड हो सकता है. हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन होना बहुत जरूरी है. एक बार एक को कंपेयर करते हैं इबोला 2014 के आउटब्रेक को और इस कोविड-19 2020 के आउटब्रेक के बीच में क्या डिफरेंस है. एसेंशियली ये जो इबोला जो हुआ था ये चालू हुआ था सियरा लियोन से, जहाँ पे 3,500 केस में से 50% डेथ हो गई थी. जब सियरा लियोन लिमिटेड था, अफ्रीका के कुछ केसेस में थोड़ा बहुत स्पेन तक गया और अमेरिका तक गया, लेकिन डिफरेंस वहाँ पे डायलिसिस पेशेंट्स का ये था क्योंकि मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा थी तो इन पेशेंट्स को हमेशा एडमिट करके ही डायलिसिस किया जाता था. इनको कभी डिस्चार्ज नहीं किया. जो बच गए वो बच गए और जो अनफॉर्चुनेटली मर गए डायलिसिस पे वो मर गए, लेकिन वो विद इन हॉस्पिटल थे, वो कभी हॉस्पिटल के बाहर नहीं थे, जो कि सिनेरियो कोविड-19 के साथ नहीं है. ये आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है. इन पेशेंट्स को सबको हॉस्पिटल डायलिसिस नहीं दे सकते. इनकी ओपीडी डायलिसिस मेंटेन करना, कंटिन्यूटी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी ऑफ डायलिसिस ब्रेक हो जाएगी तो ये पेशेंट भले कोरोना से नहीं मरे, ये डायलिसिस की कमी से मर जाएंगे. तो पेशेंट को पहले ही क्लियर कट सलाह दे दी जाए कि इमरजेंसी डायलिसिस की सिचुएशन ना बने, क्योंकि अगर ये डायलिसिस मिस करते हैं और इमरजेंसी डायलिसिस की में आते हैं तो हो सकता है सांस फुला के आए. सांस फुला के आएंगे तो भले कोरोना नहीं हो, इनको आइसोलेशन में ले जाना पड़ेगा. आइसोलेशन में ले जाना मतलब एक भारी भरकम खर्चा मरीज के लिए भी और इंडियन रिसोर्सेज के ऊपर भी, पीपी किट्स के लिए भी, हर चीज के लिए. बहुत क्लियर कट सलाह डायलिसिस टेक्नीशियन का रोल है इसमें. हर वक्त हर बार मरीज को बताए डायलिसिस मिस नहीं करे, पानी पे नियंत्रण रखे. ये सारे जो एजुकेशनल रोल्स हैं ये सारे टेक्नीशियंस के हाथ में हैं. दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज एंड आल्सो स्प्रेड एंड ब्रेक सम ऑफ द मिथ्स, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि इनका इंटरेक्शन एक्चुअली फैमिली की तरह रहता है मरीजों के साथ. It starts with the arrival of the patient. आप फोटो देखिए, एक पेशेंट डायलिसिस के लिए आ रहा है, उसके साथ तीन लोग अटेंडेंट्स आ रहे हैं. बहुत गलत है, सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल अलाउड नहीं करना चाहिए. एक पेशेंट जो खुद आ सकता है उसको खुद आना चाहिए. एक पेशेंट को अगर सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो उसके साथ मैक्सिमम एक अटेंडेंट को आना चाहिए, और उस अटेंडेंट को भी डायलिसिस यूनिट के लिए अंदर नहीं घुसने देना जब तक कि उसको कुछ बताना नहीं हो मरीज के बारे में या कुछ नई नॉलेज नहीं ट्रांसमिट करनी हो. उसको प्लीज कृपया करके डायलिसिस के साफ बाहर साइन लगा दीजिए, अटेंडेंट्स नॉट अलाउड. साइन बोर्ड हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए. उसमें साफ लिखा होना चाहिए कि कोई भी किसी भी मरीज को ये चीजें लक्षण है तो पहले बाहर वेटिंग एरिया में वेट करे और डॉक्टर से इवैल्यूएट करा ले, सीधे डायलिसिस यूनिट में नहीं घुसे. सिमिलरली मेडिकल स्टाफ
पेशेंट तो मैं मान सकता हूँ कि अपनी डायलिसिस कराने के लिए झूठ बोल सकता है या छुपा सकता है, पर मेडिकल स्टाफ जो हम लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, इन लोगों को अपफ्रंट अगर कोई लक्षण आते हैं तो अपने डायलिसिस मैनेजर से या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके नेसेसरी क्वारंटीन के लिए प्रोसीड करना चाहिए। क्वारंटाइन मैंने पहले बताया, क्वारंटाइन इज फॉर सेफ्टी, क्वारंटाइन डज नॉट मीन दैट यू आर डाइंग। तो बिफोर अराइवल टू डायलिसिस यूनिट ये सारी हिस्ट्री आप लेंगे, बुखार की, खांसी की, कफ की, सांस फूलने की हिस्ट्री में आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, किसी का 4 किलो पानी बढ़ा है तो ऑब्वियसली सांस फूलेगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोविड है, उसको डायलिसिस करके पानी निकालना है। लेकिन अगर बिना वेट गेन किए, जिसका वेट बढ़ा ही नहीं है, उसको उसका सांस फूल रहा है तो डेफिनेटली हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। सिमिलरली डायरिया ऐसा सिम्टम है जो कि कोविड में बहुत पाया जा रहा है। अगर डायरिया हो रहा हो, साथ में फीवर हो और सांस फूल रहा हो, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिल रहा हो, तो इमीडिएटली नेफ्रोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, या स्क्रीनिंग एरिया जो अस्पताल में बनाया गया है वहाँ पे पेशेंट को डाइवर्ट कर देना चाहिए। पेशेंट जो स्टेबल डायलिसिस पे है उनको अकेले आना है विदाउट अटेंडेंस, एंड प्लीज डू नॉट अलाउ अटेंडेंस इनसाइड द यूनिट। इन माय यूनिट्स आई हैव नॉट अलाउड एनीवन। इसके ऊपर 2-4 बार चर्चा भी हो गई, बहस भी हो गई, लड़ाई भी हो गई। नो मीन्स नो, देयर शुड बी नो वेरी वेरी सीवियर थ्रेशोल्ड टू एनीवन टू बी अलाउड इनसाइड द यूनिट। पेशेंट को यूजुअली लक्षण जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं या लक्षण आ सकते हैं, 2 से 14 दिन के बीच में कभी भी लक्षण आ सकते हैं। इनके बारे में आपको हमेशा, वैसे तो सरकार ने एक ऐप बनाया है आरोग्य सेतु, और ऑन करके रखना चाहिए और उसकी लोकेशन ऑन करनी चाहिए, पर मेरे ख्याल से ये हमारे देश में संभव है नहीं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से पेशेंट्स शायद वो फॉलो भी नहीं करेंगे। इसलिए आपको इंडिविजुअली हर बार एक स्क्रीनिंग पर्सनल और सिंगल परफॉर्मर और हर सेम फ्रेम क्वेश्चन वर्क हर बार पूछना चाहिए। और उस वक्त भी जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मास्क नहीं उतरना चाहिए, ना मरीज का उतरना चाहिए, ना उसके अटेंडेंट का उतरना चाहिए, ना आपका उतरना चाहिए। मास्क हैज टू बी वोर्न थ्रू आउट द डायलिसिस प्रोसीजर। केवल 4 घंटे की बात है, उससे कोई दम नहीं घुटता है। प्रीवियसली हमारे यहाँ किट्स की कमी थी, टेस्टिंग की कमी थी, तो 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 सलाह ये थी कि जो भी आ रहा है, जिसको भी नए लक्षण आ रहे हैं, उसको एक एक आइसोलेशन एरिया में ले जाके वहाँ पे ट्रीट कर दें, आइसोलेशन में ले जाके, और उसका कोविड टेस्ट भेज दीजिए, और कोविड टेस्ट का वेट करिए, अगर नेगेटिव आता है तो उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन पेशेंट की डायलिसिस मत रोकिए। पेशेंट की डायलिसिस रोकेंगे, डोंट डिनाई द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस। अगर आपने डिनाई किया तो वो वैसे ही मर जाएगा। और आजकल टेस्टिंग बहुत इजीली अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। स्लाइटेस्ट सस्पिशन है, अगर पेशेंट नहीं मान रहा है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करिए, वो कन्विंस करेगा कि वो पेशेंट जो है स्क्रीनिंग कराए या टेस्टिंग कराए या फ्री में जाके सरकारी स्क्रीनिंग कराए। लेकिन अगर पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा है, या बीपी फॉल कर रहा है, या आपको लगता है पेशेंट सिक है, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑब्वियसली ओपीडी डायलिसिस में नहीं ले सकते। आपको इमीडिएटली आईपीडी डायलिसिस के लिए शिफ्ट करना चाहिए, आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए। ये सब ध्यान करते हुए जो मेन डायलिसिस चीफ टेक्नीशियन ऑफिसर है, उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मास्क और सैनिटाइजर एम्पल नंबर में अवेलेबल हो, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और उसके बीच में स्मूथ अंडरस्टैंडिंग और फंक्शनिंग हो, ताकि इनकी कमी नहीं हो। अगर कोई पेशेंट आ भी जाता है बिना मास्क के क्योंकि उसके पास नहीं है, तो आप कुछ नहीं तो एक 3M मास्क तो उसको दे ही सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बेस्ट एफर्ट शुड बी मेड टू आइसोलेट पेशेंट विद सस्पेक्टेड भी है तब भी आप उसको आइसोलेट करें। अगर सेपरेट रूम अवेलेबल नहीं है तो एक डेजिग्नेटेड आइसोलेटेड शिफ्ट लास्ट शिफ्ट में कर दीजिए, और उसके बाद सैनिटाइज करके 12 घंटे बाद यूनिट आप दोबारा खोल सकते हैं फ्यूमिगेट करके। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि उसको डायलिसिस एक कोविड-19 डेजिग्नेटेड फैसिलिटी में कराई जाए। 6 फीट का सेपरेशन मेंटेन करके रखिए एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। अब ये सिम्प्टोमेटिक मतलब बिल्कुल जिसको कोई लक्षण नहीं है, सिम्प्टोमेटिक मतलब उसको हल्का फुल्का कुछ लक्षण है लेकिन रिजल्ट का वेट अभी अवेटेड है, तो कम से कम ये इंश्योर करिए कि जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है उसको डिनाई मत करिए, पर बिल्कुल एंड वाला कोने वाला एक बिस्तर दे दीजिए, और उससे जो दूसरा बिस्तर है बाकी तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, वो 6 से 8 फीट दूर रहे। और अगर आपको लगता है कि वो सस्पेक्टेड है तो उसके लिए सिंगल डायलिसिस टेक्नीशियन एलोकेट करिए, जिसकी जो प्रॉपर पीपीई पहनेगा। मास्क उतरना नहीं चाहिए, टिश्यूज प्रोवाइड कीजिए, और अगर खांसी जुकाम या कुछ होता है तो वो टिश्यू को एक प्लास्टिक लाइन उसमें डिस्कार्ड करने का एक तरीका मेरे ख्याल से जैन साहब इसके बारे में बताएंगे। एंड डू नॉट अलाउ देम टू ईट। सब कुछ लोग बोलते हैं 6-8 फुट का गैप है अगर 2 बेड में, तो आप उतार दीजिए, पर एक हाथ में फिस्टुला है, एक हाथ से वो कैसे खाएगा, आप पास में जाएंगे बहुत सारी। मैंने अपनी यूनिट में बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई है, आई डू नॉट अलाउ देम टू ईट। अगर किसी को हाइपो होता है तो डेक्सट्रोज दे सकते हैं, इट कैन बी मैनेज्ड। खा के आइए, जाके खाइए, 4 घंटे भूखा रहने से कोई नहीं मरने वाला। प्लीज डू नॉट अलाउ देम टू टेक ऑफ द मास्क एंड अलाउ देम टू ईट। पीपी के बारे में मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ा है, पीपी पहनना है, अगर सस्पेक्टेड है तब भी पीपी पहनना है, एटलीस्ट लेवल 2 पीपी पहनिए। अगर डेफिनेट प्रोवन है तो लेवल 3 पीपी चाहिए, और उसके लिए आइसोलेशन सेंटर जो अस्पताल जो सरकार ने बनाए हैं वहीं पे डायलिसिस हो सकती है, वो आप हम लोगों को डायलिसिस नहीं लेनी है। फिर आपको एक पॉलिसी जो मैंने इंश्योर की है कि मैं आईपीडी डायलिसिस और ओपीडी डायलिसिस टेक्नीशियन अलग रखता हूँ। एक हफ्ते के लिए एक आईपीडी डायलिसिस टेक्नीशियन को रोटेट करिए, वो सारी आईपीडी करेगा, अगले हफ्ते उसको फिर वापस रोटेशन से वापस ले लीजिए, एक दूसरा टेक्नीशियन कर दीजिए। आईपीडी और ओपीडी डायलिसिस टेक्नीशियंस के बीच में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईपीडी पेशेंट्स यूजुअली सिक होते हैं और उनको कब विद इन द हॉस्पिटल डेवलप कर जाए कोविड पता नहीं चलता है।
मैंने तो यहाँ तक कि इंप्लीमेंट किया है कि 30% स्टाफ को मैं काम पे नहीं बुलाता हूँ 7 दिन के लिए बाय रोटेशन, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए। अगर मेरे 5 स्टाफ क्वारंटीन में जाने पड़े किसी किसी कारण, तो मेरे पास वो अगर दूसरे 4 स्टाफ 5 स्टाफ क्वारंटीन से निकल के आ जाएं। सेल्फ क्वारंटाइन ऑफ 30% ऑफ स्टाफ इज, दे आर नॉट गाइडलाइंस, दिस इज व्हाट आई डू इन माय यूनिट्स सो दैट द फंक्शनिंग इज स्मूथ। फेस मास्क के बारे में सबको मालूम है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बट जो नया एम्स की गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने सारे वर्कर्स को 4 मास्क N95 दे दिए हैं। 1 2 3 4 उसको लेबल करिए। पहले दिन पहला पहनिए, चौथे दिन पे चौथा पहनिए, उनको दूर रख दीजिए, उनको धूप में नहीं रखना है, उनको नॉर्मली रखिए पर डिस्टेंस मेंटेन करिए, और 5वें दिन दोबारा आप पहला मास्क पहन सकते हैं। और ये आप 4 बार तक कर सकते हैं, मतलब आपके 4 या 5 मास्क जो है वो 20 से 25 दिन चलेंगे, और इनको फिर 20-25 दिन के बाद जाके एक येलो उसमें जो होता है हमारा डिस्कार्ड करके इसको फेंक देना चाहिए। और एम्स कम से कम ऐसा कर रहा है कि उनको 20 दिन के बाद नए 5 मास्क इशू कर रहा है। ये हर जगह संभव नहीं है, पर जहां तक ये पॉसिबल हो प्लीज इसको कोशिश करिए कि अपने अपने अस्पताल में इम्प्लीमेंट किया जाए। आई प्रोटेक्शन, गॉगल्स, ये सबको मालूम ही है। इसको डिसइंफेक्ट करने के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। आप अल्कोहल से बेस्ड जिससे आप हाथ वॉश कर रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, सोप एंड वाटर से भी धो सकते हैं, और इंडिविजुअली जो गॉगल्स हैं उनके साथ इंस्ट्रक्शन आते हैं आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। यू हैव टू, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आंखों के थ्रू भी जा सकता है, तो गॉगल्स पहनना भी अनिवार्य है, या फिर फेस शील्ड होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो, considering that we come from a poor country. The best of the practices may not be followed, but within what our resources are, we still need to follow the best practices. And basically what we have to realize is, if it is a positive case, please do not, unless it's an emergency and he's dying, then you isolate him and you wear your PPE in your designated different area with a portable RO. Otherwise, you please refer him to a center which is equipped and geared to dialyze such patients. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस है, मेरे ख्याल से डॉक्टर शर्मा मिस्टर शर्मा जी कवर करेंगे, इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सीधे आऊंगा अगले टॉपिक पे, मिथ्स एंड फैक्ट्स। मिथ्स मतलब जो हमारी सोच है, और सच्चाई क्या है। ये WHO के हिसाब से गाइडलाइंस है, उसके बारे में 5 मिनट का चर्चा और करूंगा। मिथ का मतलब क्या है? मिथ का मतलब है हमारा इमेजिनेशन, हमारी ऐसी इमेजिनेशन जो एक स्टोरी का फॉर्म ले लेती है। जैसे कि ये है, काली बिल्ली ने रास्ता काटा और एक्सीडेंट हो गया, ये एक मिथ है। काली बिल्ली रोज रास्ता काटती है, रोज एक्सीडेंट नहीं होते, लोग मरते नहीं है। तो कोरोना वायरस के मिथ बस्टर्स जो WHO के हिसाब से जो कुछ पॉइंट्स आगे आए हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि मिथ क्या है और फैक्ट क्या है। COVID-19 इज फेटल, इट इज फेटल यस, बट मोर्टेलिटी जो है मात्र 3% है। 97% 95 मतलब 3 to 6% है, वेरिंग ऑन द कंट्री। 95% पेशेंट्स रिकवर। इनफैक्ट 80% मरीजों को तो लक्षण भी नहीं आते कुछ, जस्ट द वायरस जस्ट टचेस देम एंड गोज। सो इट इज अ डेंजरस वायरस, बट इट विल नॉट ऑलवेज किल यू। वायरस को केवल बुढ़े लोगों को पकड़ेगा या बुढ़े लोग ही मरेंगे, ये गलत फहमी है। इन्फेंट को भी पाया गया है किसी कंट्री में कि उस एज तक भी पकड़ा गया है। 12 साल के बच्चे को स्ट्रोक होते हुए देखा है कनाडा में इस वायरस से। और मतलब कोई भी ऐसा आदमी पर्सन नहीं है जो इम्यून है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इम्यून है तो आप गलत फहमी में। पर आपको ये रियलाइज करना है कि आपकी मेडिकल कंडीशन है, एस्थमा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, और हमारे पेशेंट्स खास करके किडनी, जिनको सब कुछ होता है, जिनको डायबिटीज भी होती है, हार्ट की डिजीज भी होती है और किडनी डिजीज भी होती है, दे आर द वर्स्ट, दे आर द मोस्ट लाइकली टू सकम, दे आर द मोस्ट लाइकली टू डाई। So we have to keep a very close watch on these people. गर्म पानी नहाने से, अब ये सब टेक्नीशियंस है ना, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं गर्म पानी से नहाऊंगा तो आप गलत ज्ञान मत बांटिए। मिथ्स जो है ये आपके टेक्नीशियन के टीम में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे से बात करने नहीं आएंगे, ये आपसे डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं। बहुत गर्म पानी से इस मौसम में नहाने से कोरोना वायरस नहीं मरेगा, आपकी शरीर ही जल सकता है और कुछ नहीं होगा। और डायबिटिक जिनको न्यूरोपैथी होती है वो गर्म पानी में पाँव डालेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि गर्म पानी में उनके पाँव में अल्सर कब बन गया और जल कब गया पाँव। ध्यान रखिए, गर्म पानी से नहाना रिकमेंडेड नहीं है। कोरोना वायरस विल नॉट सर्वाइव इन इंडियन हॉट वेदर, मिथ है। आप देख लीजिए, करीब 1,30,000 केस हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से 2.5 लाख हो चुके होंगे, मालूम ही नहीं है किसी को। इट विल ट्रांसमिट इन ऑल वेदर्स, चाहे वो कैनेडियन कोल्ड वेदर हो, चाहे वो इंडियन हॉट वेदर हो, चाहे वो कोई भी वेदर हो, इट विल सर्वाइव। एंड इट विल ओनली सर्वाइव बिकॉज वी आर अलाउइंग इट टू सर्वाइव बाय नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हमारे डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और उसके पास होस्ट नहीं होगा, जब होस्ट नहीं होगा तो वो अपने आप ही मर जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड मस्कीटो से केवल मलेरिया और डेंगू होता है, मस्कीटो बाइट से कोरोना नहीं होता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल हाथ साफ करने के लिए बना है, पीने के लिए नहीं बना है। अल्कोहल ज्यादा पिएंगे तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ही बनेंगी। इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोविड, इट इज डेंजरस। क्या कोई स्पेसिफिक दवाइयां हैं जो इसको ट्रीट करती हैं? अभी इतनी रिसर्च के बाद तो कोई दवाई मिली नहीं। सबके अपने अपने आंकड़े हैं, सबके अपने अपने अंदाजे हैं कि इससे शायद बच जाएंगे। कोई प्लाज्मा थेरेपी बोलता है, कुछ एंटीवायरल बोलता है, पर कोई प्रूवन दवाई नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में भी लोग कहते हैं कि मेडिकल वर्कर्स, टेक्नीशियंस और जो एक्सपोज हैं, इन लोगों को वंस अ वीक प्रोफाइलैक्सिस लेनी चाहिए। ले भी रहे हैं लोग, एंड मैं तो रिकमेंड भी करता हूँ, लें। अगर उनको कोई एज रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो ले लें, लेकिन इसके ऊपर भी कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है कि इसका कोई फायदा होगा या नहीं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, और मेरे ख्याल से मोदी जी भी ले रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है।
कोल्ड वेदर जैसे मैंने बताया, इट कैन नॉट किल। कनाडा एंड न्यूयॉर्क, मैक्सिमम केसेस न्यूयॉर्क में, ठंडा वेदर है, बट सबसे ज्यादा स्प्रेड भी वहाँ पे है। एक मिथ है कि ये जो चाइना से गुड्स आ रहे हैं या हमारे अमेजोन पैक से आ रहे हैं, इससे ट्रांसमिट हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ट्रांजिट टाइम इतना ज़्यादा है कि वो वायरस वैसे ही टेम्परेचर में और आते आते 24 से 48 घंटे में मर जाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर अगर आपको लगता है उस डब्बे में आपको ज़्यादा लेना है, तो आप मास्क पहन के डब्बा लीजिए, उसको बाहर से सैनिटाइज कर लीजिए और उसके बाद उसको आराम से खोल के आप यूज़ कर सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। आर हैंड ड्रायर्स इफेक्टिव इन किलिंग द न्यू कोरोना वायरस? नो, ओनली अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप एंड वाटर इन द करेक्ट मैनर। जो 8 स्टेप हैं वैसे फॉलो करेंगे और हैंड ड्राई करेंगे, तभी वो आपके आपके हाथ से छूटेगा। ये ड्रायर्स का कोई रोल नहीं है। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप्स का भी कोई रोल नहीं है। इससे केवल यूवी रेडिएशन होता है, स्किन इरिटेशन होता है, इससे कोई हेल्प नहीं होगी। You have to stick to the basics, and the basics are good hand wash with either an alcohol based rub or soap and water. थर्मल स्कैनर्स, लोगों को लगता है थर्मल स्कैनर हम पार कर गए, इसका मतलब हमें कोरोना नहीं है। लोगों को लगता है कि थर्मल स्कैनर हम पार नहीं किया, हमें डायरेक्ट कर दिया है कोरोना की उसकी स्क्रीनिंग यूनिट में, तो हमें कोरोना है। थर्मल स्कैनर का काम है केवल आपका टेम्परेचर जांचना है। थर्मल स्कैनर से ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता। बाकी सब जो पीसीआर बेस्ड टेस्ट है उसी से पता चलता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जो करंट वैक्सीन है निमोनिया के लिए जो हम लगाते हैं किडनी के मरीजों को, क्या वो कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करती हैं? कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसमें क्रॉस इन्फेक्शन या क्रॉस इम्यूनिटी इन वैक्सीन से मिलती हो। और करंट डेटा ऑफ वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस ये है कि फेज 2 ट्रायल में अमेरिका में तो कम से कम अभी 600 लोगों को डाल दिया है, फेज 1 ट्रायल पार हो गया था, और कनाडा में भी फेज 2 ट्रायल चालू हो गया है। मुझे बहुत उम्मीद है कि 4 से 6 महीने के अंदर एक वैक्सीन आ जानी चाहिए। और प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी इंडिया में है, टेक्नोलॉजी शेयर होने के बाद मेरे ख्याल से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कैन मेक अ बिलियन वैक्सीन इन अ ईयर, and which should serve the purpose. Let's wait and watch for that. There are no antibiotics which will prevent. थोड़ा सा डेटा आया कि डॉक्सीसाइक्लिन से, अभी बांग्लादेश से डेटा आया कि डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन से काफी लोग बच गए, पर उस डेटा को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया है। तो एज ऑन प्लेट कोई एंटीबायोटिक इसको प्रिवेंट नहीं करती। आप अपने मरीजों को अगर कोई पूछता है तो साफ साफ बता दीजिए, कोई इलाज संभव नहीं है, कोई प्रिवेंशन भी संभव नहीं है। सिमिलरली मिथ है कि गार्लिक खाने से, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, शायद इस पर प्रोटेक्शन होगा या विटामिन सी खाने से होगा। ये सब मिथ हैं, ये सब गलत है। गार्लिक खाना अच्छी चीज़ है, विटामिन सी खाना अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, पर ये कोरोना वायरस से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगी। कैन स्प्रेइंग अल्कोहल और क्लोरीन ऑन योर बॉडी किल द न्यू कोरोना वायरस? नो, इट विल नॉट किल द कोरोना वायरस। आपको जो हैंड वॉश स्टैंडर्ड के बताया है आपको वही करना है। अल्कोहल स्प्रे और क्लोरीन आप बॉडी पे, पूरी बॉडी पे ज़्यादा लगाएंगे तो इससे हार्म ज़्यादा हो सकता है, कपड़ों को भी और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी, आइज को, माउथ को। तो प्लीज इंश्योर कि आप ये जो है अल्कोहल लेके मुंह पे नहीं मलिए। मैंने देखा है एक दो लोगों को करते हैं कि पूरे मुंह पे मल लेते हैं। इट इज ओनली फॉर हैंड, इट इज नॉट फॉर योर फेस। वैक्सीन के बारे में मैंने बात कर ली थी। हाँ, अगर आप स्मोकिंग, आपके पेशेंट स्मोक कर रहे हैं तो उनको प्लीज बताइए, और अगर खुद भी स्मोक कर रहे हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। स्मोकिंग इज डेडली। वी लूज 8 मिलियन पीपल बिकॉज ऑफ टोबैको यूज, बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड एक्सेट्रा। एंड ये जो है इनके फेफड़े जो रहते हैं, तो ये वाले मरीज जरूर डेफिनेटली आर मोर लाइकली टू कैच कॉम्प्लिकेशंस। कैन इट स्प्रेड थ्रू फीसेस? हाँ, लैट्रिन के थ्रू, मोशन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। माओ जो है, जो भी बच्चे के पॉटी साफ करती हैं, जो भी करते हैं, जो स्टाफ नर्सेज हैं, जो इन पेशेंट्स का डायपर चेंज कर रहे हैं, जिनको जरूरत है, उनको सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है। मास्क पहन के रखना है, साफ करने के बाद अपना हाथ धोना है अच्छे से। ड्रिंकिंग वाटर से, गर्म पानी पीने से सोर थ्रोट कम हो जाता है, ये ठीक है, पर आप ये ध्यान रखिए कि गर्म पानी पीने से इस वेदर में डायलिसिस पेशेंट की प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि ब्रेन का जो सेंटर, थर्ड सेंटर है, वो गर्म समझता ही नहीं है। अगर आप अपने मरीज को गर्म पानी पी रहा है तो उसको बोलिए कि आपको ठंडा पानी पीना है, नहीं तो वो हर दूसरे दिन 4 लीटर 5 लीटर पी के 5 किलो बढ़ा के आ जाएगा, क्योंकि गर्म पानी से किसी की प्यास नहीं बुझती। पानी तो ठंडा ही पीना पड़ेगा। गर्म पानी के लिए मना कर दीजिए मरीजों को। विटामिन सी, अगेन अ मिथ। विटामिन सी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ाती जरूर है, पर कोई हेल्प नहीं करेगी। लोगों की ये धारणा है कि मैं 10 सेकंड या 20 सेकंड सांस रोक लेता हूँ तो मेरे में लंग्स बहुत स्ट्रांग है और मुझे वायरस नहीं होगा। ये धारणा भी गलत है। वायरस जिसको होगा वो जिसको होना है होगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। आप केवल अपनी तरफ से प्रिवेंशन ले सकते हैं, और इस टेस्ट के कोई मायने नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि इट इज नॉट मोर डेंजरस देन रेगुलर सीजनल फ्लू। गलत है। इसकी मोर्टेलिटी 10 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट आइसोलेशन से ये हुआ है कि जो कॉमन फ्लू होता था वो बंद हो गया, क्योंकि लोग अपने आप अब मिल ही नहीं रहे आपस में, वो तो केसेस ही आना बंद हो गए। पर ये जो कोविड-19 है, इसकी मोर्टेलिटी 10 गुना ज्यादा है। तो इट इज मच मोर डेंजरस देन डेंजरस फ्लू। लेटर पैकेज रिसीविंग के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की शिपिंग और पैकिंग इतने दिन में आती है कि ऐसे टेम्परेचर्स पे आती है कि ये इस पे वायरस होना नामुमकिन ही है लगभग। केवल एक ही केस मिला है जिसमें कुत्ते या बिल्ली से ट्रांसमिशन हुआ था हांगकांग में। आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं है जिससे ये बोल सकते हैं कि एनिमल ट्रांसमिशन प्रोवन हो।
तो आपके घर में पेट्स हैं तो आप प्लीज यू शुड बी मतलब यू आर सेफ टू प्ले विद देम. Last and not the least, Gomutra. Gomutra does not cure any virus, nor does it cause any disease. It's again a myth, and it will always remain a myth. And always remember, none of the patients can be rejected. You cannot reject any of the patients. If you are rejecting any of the patients, obviously there's got to be a huge discussion with nephrologist before refusing them. आंकड़े देख लेते हैं. ये 3 दिन पुराने 2 दिन पुराने आंकड़े हैं. जितने केसेस थे उनमें से 94% एक्टिव केसेस नॉर्मल केयर घर पे आइसोलेशन करके ठीक चल रहे हैं. 3.5% को क्रिटिकल केयर या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें 0.5% को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है. 3% के करीब आईसीयू में जाते हैं और 3% केवल ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं. तो आंकड़ों से आप देखेंगे कि वायरस वाइड स्प्रेड है, लेकिन वायरस मार भी रहा है, पर इतना डेडली नहीं है कि ये विश्व को समाप्त कर देगा. मेरे ख्याल से हम लोग इससे 6 से 8 महीने में या 1 साल में निकल आएंगे. ये मेरी आकाश की यूनिट है. मेरे डिसिप्लिन टेक्नीशियंस हैं, दिन रात काम कर रहे हैं. आई सैल्यूट देम. दे आर द हीरोज फॉर डायलिसिस पेशेंट. दे आर द हीरोज फॉर all your community is heroes for nephrologist and dialysis patient. I salute all of you. Jai Hind. Thank you so much, sir. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं Q&A चैट बॉक्स में. सर आप अभी यू मे वांट टू आप उनको एड्रेस कर सकते हैं, और वील टेक इट टू द एंड ऑफ द सेशन. बाद में भी ले सकते हैं हम लोग. Now moving over to the next speaker, Mr. Jain, you can share. आप share कर सकते हैं अभी. Dr. Arijit, I would request you to take these questions right away, so that you know since it relates to Dr. Amber. Yeah, I'll do that. So I'll start with okay. I can let me start from down below. Okay, I can't read it because कोई screen पे वो ना cover कर रहा है. Parminder Singh, you have to just log out, please. Thank you. What PPE is recommended for dialysis staff during normal dialysis session? Face shield and face mask is good enough. अगर आप उसके साथ एक आप plain gown में अगर आपका hospital supply कर रहा है तो it is a bonus. अगर नॉन सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं तो मेरे ख्याल से एक फेस शील्ड, एक फेस मास्क तो आपको चाहिए. रेगुलर हैंड वॉश करना ही करना है शिफ्ट्स के बीच में, और रेगुलर करते रहिए. 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आप करते रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप टच करेंगे ही. और कुछ यूनिट्स में लेवल 2 तक के पीपीई दिए जा रहे हैं. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फॉर डायलिसिस पेशेंट, नो, नॉट फॉर डायलिसिस पेशेंट. डायलिसिस पेशेंट को बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं. अगर यंग है तो फिर भी आप दे सकते हैं. हार्ट डिजीज होती है, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हो सकती हैं, शॉर्ट प्रोलॉन्ग क्यूटी हो सकता है, हार्ट में दिक्कत आ सकती है. तो विदाउट सुपरविजन आप प्लीज प्रिस्क्राइब नहीं करिए. आपको अगर ऐसे कोई सवाल आता है, वो आप उसको पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए. ही कैन डिसाइड वेदर दैट प्रोफाइलैक्सिस कैन बी गिवन और नॉट. Does immune booster medication help prevent in COVID dialysis? Immune booster, there is nothing like immune booster medicine. आपको अपनी इम्यूनिटी बरकरार करने के लिए ताजे फल सब्जी, जो गाइडलाइंस है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से सलोनी बताएगी, वो लेना है. विटामिन सी आप चाहे ले ले, हार्म नहीं करेगी, बेनिफिशियल है. बट इससे कोई इंश्योर नहीं होगा कि आपको ये कोविड होगा या नहीं. प्लाज्मा फेरेसिस के डिटेल्स मैं सवाल नहीं समझा, पर प्लाज्मा फेरेसिस भी वैसे ही की जाएगी. अगर करने की जरूरत है, जैसे डायलिसिस की जाती है, उसी आइसोलेशन में की जाएगी, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स को कोविड है या नहीं है. अगर कोविड है तो कोविड सेंटर में की जाएगी, कोविड नहीं है तो जो प्रिकॉशन, जनरल प्रिकॉशन लेते हैं उसके साथ ही की जाएगी. Sham from Kangra, Himachal. Tuesday and Wednesday I did dialysis on one patient and he is not suitable. Then I referred to medical college. Now he is COVID positive. So administration of Himachal Pradesh has quarantined our staff, but they are not explaining who are running the unit and save another dialysis patient's life. Right? तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो क्लियर कट है कि आपको 14 दिन का क्वारंटाइन होगा. मेरे ख्याल से 7 दिन के बाद टेस्ट कर लेके शायद अगर नेगेटिव आएगा तो बाहर भी निकाल देंगे. उस यूनिट को रन कैसे करना है या उसके मरीज कहाँ जाएंगे, ये सरकार की हेडेक है या आपकी हेडेक नहीं है. आपकी हेडेक इस वक्त ये है कि आप एक्सपोज हुए, आप क्वारंटाइन रहें और क्वारंटाइन से बाहर नहीं निकलें और किसी और को एक्सपोज नहीं करें. एज अ गुड इंडियन नेशनल इट इज एक्सपेक्टेड, एज अ एजुकेटेड टेक्नीशियन इट इज एक्सपेक्टेड कि आप क्वारंटाइन के जो नियम है उसको फॉलो करेंगे. I think I have answered all of them. Oh, okay, there are new ones. It has been said that regular use of sanitizer can cause skin disease. So okay, it's a myth. It's a myth. It can definitely cause a little bit of irritation in patients who have pre-existing disease. तो उनके लिए ऐसा है कि उनको ग्लव्स पहनने चाहिए, नाइट्रालाइट ग्लव्स पहन लें, या फिर सेफ ग्लव्स पहन के ग्लव्स को सैनिटाइज करते रहें, और एंड ऑफ द शिफ्ट ग्लव्स उतार के फेंक दें और घर चले जाएं. तो आपका कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा सैनिटाइजर से, अगर आपको स्किन की डिजीज या इरिटेशन है.
how frequently should check COVID-19 test if indication? So you should not check unless there is a suspicion. You are not supposed to check for COVID-19 RT-PCR. कुछ दिनों में एक पायलट प्रोजेक्ट बॉडी इंडिया ने चालू किया है बैंगलोर में और इधर पे हैदराबाद की तरफ कुछ 600-800 मरीजों के बीच में IgG IgM के किट्स टेस्ट कर रहे हैं। उसमें ये आइडिया लग जाएगा कि कम्युनिटी में कितना स्प्रेड है और एंटीबॉडीज कितनी आ गई हैं। उससे आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल सिचुएशन इंडिया की क्या है। लेकिन कोविड-19 का टेस्ट डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है until unless there is a high degree of suspicion. आप एक नॉर्मल वॉकिंग पेशेंट को कोविड-19 नहीं लिखना है आपने, और अगर वो ठीक ठाक डायलिसिस पे चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते करा लेंगे उसका टेस्ट। और ऐसा भी नहीं है जैसे कि वायरल मार्कर्स हम हर 3 महीने कराते हैं या हर महीने कराते हैं यूनिट में, तो ये कराना जरूरी है, नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है और कृपया इनको इन्फोर्स भी मत करिए अनलेस आपकी यूनिट के नेफ्रोलॉजिस्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, देन आई विल रिस्पेक्ट दोज गाइडलाइंस बिकॉज ही हैज हिज ओन एक्सपीरियंस। यू शुड फॉलो योर नेफ्रोलॉजिस्ट। Prevention of COVID is simple, social distancing, everyone knows about it, regular hand wash, and good diet and good sleep. Dear sir, what is the symptoms of recognized or sign of asymptomatic? Asymptomatic का मतलब ही होता है कि symptoms नहीं होंगे तो sign भी नहीं होंगे, तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। Asymptomatic मतलब कोई लक्षण नहीं है तो नहीं होंगे। Which kind of precaution when we deal COVID-19 patients with B positive? Same precaution, there doesn't change. B positive हो या C positive हो, अब ये कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट बोल रहे हैं, मैं सवाल नहीं समझ पाया आपका। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट और बी पॉजिटिव भी है तो आप अपने यूनिट में डायलाइज नहीं करेंगे, आपको रेफर करना पड़ेगा जहाँ पे सरकार ने आइसोलेशन फैसिलिटी बनाई है, और बी पॉजिटिव मशीन पे डायलाइज नहीं कर सकते आप उसको, और उसके लिए फिर वो डेडिकेटेड एरिया ही बना हुआ है, वहीं पे डायलिसिस होगा। सस्पेक्टेड के लिए लेवल 2 और प्रोवन के लिए लेवल 3। उमेश जी, सस्पेक्टेड के लिए लेवल 2 और एटलीस्ट लेवल 2, लेवल 3 मिल जाता है अस्पताल से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रूवन के लिए डेफिनेटली लेवल 3 पीपी। Dr. Ambar, before you finish your presentation, I just wanted to have a small question. I intentionally didn't put it on this chat box. So the question which is already being asked here somewhere was related to plasmapheresis. So I just wanted to know, how about plasma therapy, which is being, so it's all experimental. Okay. So there are claims of few plasma therapy showing recovery, but unless you have a randomized control trial in medicine, everything is randomized control before it becomes a therapy, or you have a large case series, that everyone who received plasma therapy was saved. That has not happened. A case report of one patient receiving plasma therapy at max and coming out does not establish it as a standard therapy. So there are, I think it was not plasmapheresis, they were possibly wanting to talk about plasma therapy. तो plasma therapy का कोई definitive role नहीं है, जैसे भी अभी antivirals का भी कोई established role नहीं है। तो treatment individual protocols individual hospital के हैं, individual experiments किए जा रहे हैं, पर as of date कोई standard protocol नहीं है कि plasma therapy देने से मरीज बच जाएगा। Attempt किया जा सकता है क्योंकि experimental है, experiment किया जा सकता है जान बचाने के लिए। Right, sir. Thank you. Dr. Ajit, I think you can now take it further. Yeah, there are a couple of more and we'll questions. finish that after that. Maybe a question आया है, is reuse process recommended during this pandemic situation? So yes, it's not like that you have to always do a single use. People are doing reuse. Even I have started doing reuse because एक बार यूनिट में 1-2 केस पॉजिटिव आके उसके बाद 2 हफ्ते तक रेगुलर चेकिंग करके एक बार यूनिट सैनिटाइज करके, और अभी यूनिट नीट एंड क्लीन है जहाँ पे सारे पेशेंट नेगेटिव हैं, बैक टू बैक चेक करके देख लिया है, तो वहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स में रीयूज चालू करा दिया है। जहाँ पे मेरे को आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि रीयूज करना चाहिए, वहाँ पे मैंने सिंगल यूज रखा है। बड़े इंडिविजुअल यूनिट वाइज पॉलिसीज हैं, कुछ यूनिट्स बड़ी कंपैक्ट है, बहुत क्राउडेड है, वहाँ पे सिंगल यूज ही करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपको। कुछ यूनिट थोड़ी रिलैक्सड है, एम्बिएंट स्पेस है, जगह है, अच्छे से बनी हुई है, पेशेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़्यादा एजुकेटेड है, वहाँ पे ऑनेस्ट हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से रीयूज कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल पॉलिसी है, रीयूज कैन बी अलाउड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। A last question before we move to the next speaker is, while treating COVID suspected or confirmed case, remaining dialysate fluid should be discarded or not? They should be discarded. All right. Thank you so much. Mr. Jain, you can now share your presentation. Thank you so much, sir. Everyone, please bear with us.
Mr. Jain will स्लाइड connect खोलना very shortly. शेयर तो कर दिया मैंने इसलिए। हेलो हेलो जी जैन साहब, अब हाँ। दिख रहा है, सब दिख रहा है, आप बोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है। In every hospital, dialysis unit is working to save the life of ESRD patient. जैसे कि अभी डॉक्टर अंबर खेड़ा ने भी बोला है कि डायलिसिस यूनिट बंद नहीं हो सकती, डायलिसिस यूनिट जो है एक दिन के लिए भी बंद नहीं कर सकते हम लोग, तो हमें डायलिसिस यूनिट तो चलानी है और उसमें हमें पेशेंट जो ESRD पेशेंट है उनकी लाइफ सेव करने के लिए एक भी डायलिसिस मिस नहीं होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो यू आर दी लाइफ सेविंग हेल्थ केयर वर्कर। जितने भी डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं वो सारे हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो लाइफ सेविंग है। डायलिसिस टेक्नीशियन हो या नर्सिंग स्टाफ हो, दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर। जो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट है, जैसा कि डॉक्टर अंबर खेड़ा ने अभी बोला कि ये जो बीमारी है ये डेडली नहीं है, तो स्टाफ को या टेक्नीशियन को या सिस्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को घबराने की जरूरत नहीं है कि भी हमें कुछ हो जाएगा इसमें। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो टेक्नीशियंस है, जो नर्सिंग स्टाफ है, दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि हमें डायलिसिस करनी है। What are the universal precautions? Universal precautions are control guidelines designed to protect workers from exposure to disease spread by blood and other body fluids. जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, सिस्टर्स हैं, उनको हमें कैसे, मतलब उनको एक्सपोज ना हो, उससे बचाने के लिए जो है ये गाइडलाइंस हैं। जैसे बॉडी और ब्लड का जो वो है उसको हमें हाथ से टच नहीं करना है। बॉडी फ्लूइड है या ब्लड है, अगर वो नीचे जमीन पे गिर गया है, मशीन पे गिर गया है, क्योंकि डायलिसिस यूनिट में ऐसा बहुत जगह होता रहता है, जब हम निडल लगा रहे हैं तो आपका जो सीट बिछाया हुआ उसके ऊपर आ जाएगा। तो जो डायलिसिस पर्सन है उसको ग्लव्स डाल के रखना है। जो सॉकेज हुई है ब्लड की उसको अलग से जो है एक पॉलीथीन लगी हुई उसमें डालना है और इसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है। अगर उस ग्लव्स पे ब्लड लग गया है तो उस ग्लव्स को निकाल के जो है डिस्कार्ड करना है प्रॉपर्ली, ये बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस अप्लाइड यूनिवर्सली इन केयरिंग फॉर ऑल पेशेंट, जस्ट लाइक कि हमें हाथ धोने हैं। जो हमारे डायलिसिस करने के लिए इक्विपमेंट काम में आते हैं उनको हमें सबको प्रॉपर्ली जो है डिस्कार्ड करना है। जो सिरिंज और निडल्स हैं उनको हमें कवर नहीं करना है और जो प्रोटेक्टिंग आइटम्स हैं उनको हमें प्रॉपर्ली पहनना है। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या हैं? Previously known as various names including universal precautions, standard precautions are designed to reduce the risk of transmission of blood-borne and other pathogens from both recognized and unrecognized source to a suspected host. They are the basic level of infection control precautions. Hospital infection is the result of a combination of factors: microbial source plus transmission plus suspectable host is equal to infection. अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, उससे दूसरे स्टाफ को या पेशेंट को अगर लग रहा है तो बीच में जो आदमी जिसको लग रहा है वो होस्ट है और जो इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हुआ वो एक इन्फेक्शन दूसरे आदमी को ट्रांसमिट हो गया। जो हमारे बी और सी दोनों वो भी वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन जो कोविड-19 है दैट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ द वायरस, क्योंकि ये ब्लड बोर्न नहीं है, ये डायरेक्टली जो है स्प्रेड हो रहा है आपके ड्रॉपलेट से। वी डू नॉट नो हु इज इन्फेक्टेड। हमें नहीं पता डायलिसिस यूनिट में जो पेशेंट आ रहा है वेदर ही इज, उसको अगर टेम्परेचर हमने बाहर स्कैनिंग रूम में टेम्परेचर भी देख लिया, उससे हिस्ट्री भी ले ली, उससे पूछ भी लिया कि भाई आपको कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है, उसके बावजूद भी हो सकता है उस पेशेंट में वो लक्षण ना हो और वो कोविड-19 पॉजिटिव हो। तो हमें ना स्टाफ को पता है ना पेशेंट को पता है कि कौन पॉजिटिव है। उसके लिए हमें प्रिकॉशंस ही लेने जो है वो ज्यादा जरूरी है। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द डिसीज प्रिवेंशन। ये बहुत ज्यादा आज के टाइम में अगर आप देखोगे कि बाहर लोगों के घरों में आ गया है हॉस्पिटल से निकल के हैंड वॉश, जो कि अभी तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था,
bacteria and bacteria can be spread via dirty hands and they are too small to see with the human eye. You must wash your hand properly in order to remove them. हमें एक पेशेंट को टच करने के बाद अगर दूसरे पेशेंट को टच करना है उससे पहले हमें अच्छी तरह से हैंड वॉश करना है, और वो भी अच्छी तरह कम से कम 20 सेकंड में। और उसके बाद जो अल्कोहल बेस्ड हमारे हैंड रब है उनको हमें यूज करना है, विच शुड बी मोर देन 60% ऑफ द अल्कोहल। यूज ऑफ मास्क, कैप एंड आई वियर, ये तीन चीजें डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा भी डॉक्टर अंबट ने भी बताया कि किसी हॉस्पिटल में अगर आपको गाउन मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, वो अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। इफ ए हॉस्पिटल इज रिच, ही कैन गिव यू दी गाउन्स, डिस्पोजेबल गाउन फॉर एवरी शिफ्ट, बट इफ द हॉस्पिटल इज नॉट सो रिच, दे कैन नॉट गिव यू। So will certainly protect us from splash of body blood or body fluid. Don't underestimate the importance of use of cap and mask. It equally protect our patient. तो जो भी डायलिसिस टेक्नीशियन ड्यूटी पे आया है उसको सबसे पहले मास्क लगाना है। अगर N95 मास्क नहीं मिलता तो उसको 3 लेयर मास्क जो है वो यूज करना है, कैप लगानी है, और जो आई है उसके ऊपर जो है फेस को ढकती जो सीट है, जो फेस कवर है, उसको यूज करना है। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन रिकमेंड द यूज ऑफ पीपी। ग्लव्स पहनने हैं, अनस्टाइल ग्लव्स पहन के रखें। जब हमें पेशेंट कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है, उस टाइम में हमें स्टाइल ग्लव्स डालने हैं। एप्रन पहनना है या गाउन पहनना है। प्रोटेक्टिव आई वियर जरूर यूज करनी है, और फेस शील्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डायलिसिस टेक्नीशियंस का फेस है वो पेशेंट के फेस से या जो वर्किंग एरिया है वहां से केवल 30 सेंटीमीटर या 1 फुट की दूरी पे है। जब आप निडल लगाते हो यू आर वेरी क्लोज टू द पेशेंट। तो आपको ये भी कहना है कि पेशेंट भी मास्क लगा के रखे और आपको भी मास्क लगाना है, और प्रोटेक्टिव जो है फेस शील्ड जरूर पहनना है और मास्क जरूर लगाना है। पेशेंट प्रिकॉशंस through screening at the entrance of by nursing officer. In case of any doubt, ask the patient to wait in waiting area. हम लोगों ने अपने डायलिसिस यूनिट में एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। जो हमारा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का रूम था उसको हमने कन्वर्ट किया है स्क्रीनिंग रूम में, और वहाँ पे जो सिस्टर बैठी हुई है वो पेशेंट का टेम्परेचर, उस पेशेंट की हिस्ट्री, वो सब पूछ के लिए बैठाते हैं, और उसके 5 या 10 मिनट बाद फिर से उसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको टेम्परेचर जो है ये, क्योंकि वो बाहर धूप से चल के आ रहा है तो इसलिए भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर उसका टेम्परेचर 99 से फिर भी ज़्यादा आता है 15-20 मिनट बाद, तो उसको बैठा दिया जाता है और रेजिडेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। वो आके फिर पेशेंट को देखता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को डायलिसिस में लेना है या फिर हमें आइसोलेशन एरिया में लेना है। Dialysis staff precautions. All nursing officer or technical officer who stay in main dialysis hall, जो कि डायलिसिस कर रहे हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग एरिया में है या डायलिसिस एरिया में है, दे शुड, उनको हमें सबसे पहले आते हैं डायलिसिस स्क्रब करना है, कैप पहननी है, सूज कवर पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं डिस्पोजेबल व्हेनेवर टचिंग सरफेस ऑफ पेशेंट, और स्टाइल ग्लव्स जब पेशेंट को कनेक्ट करना है और डिस्कनेक्ट करना है तब डालना है। और जो फेस शील्ड है उसको लगा के रखना है थ्रू आउट द डे। आपका जो ड्यूटी आवर्स है 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, क्योंकि कई हॉस्पिटलों में एट प्रेजेंट जो है वो 12 घंटे की शिफ्ट लगाई जा रही है, क्योंकि हमें स्टाफ को घर से लेके आना पड़ रहा है, तो इसलिए उनकी ड्यूटी 8 से 8 अल्टरनेट डे ड्यूटी करवा रहे हैं। तो पेशेंट, अगर मान लिया आपके पास वैसा गाउन नहीं है, तो जनरली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ग्रीन कलर का गाउन जो कि ओटी में यूज होता है वो मिल जाएगा, उसको हम यूज कर सकते हैं स्टाफ जो है। All hand hygienic to be done frequently, clean with soap and water. Use sanitizer more than 60% alcohol. ये सभी स्टाफ को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, जो डायलिसिस टीम है उनमें आपस में कम से कम बात करते हुए 1 मीटर का जो है एटलीस्ट फासला होना चाहिए। ज्यादा जोर से नहीं बोले, आपस में ज्यादा हंसी मजाक नहीं करें लेकिन दूर रहे। पेशेंट टू बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टेक फूड, जैसे डॉक्टर अंबर ने बताया कि उन्होंने अपनी डायलिसिस यूनिट में स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि कोई भी पेशेंट खाना घर से खा के आएगा और जाके खाएगा। इसी तरह से हमने भी अपनी डायलिसिस यूनिट में स्ट्रिक्ट किया है कि कोई भी पेशेंट डायलिसिस के टाइम में
शुरू शुरू में जो हमारा फर्स्ट वीक था उसमें हमें बहुत दिक्कतें आई हैं, पेशेंट लड़ने के लिए तैयार हो गए, नहीं मैं तो खाऊंगा। लेकिन जब उनको समझाया गया कि नहीं आप इससे भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, तब उन पेशेंटों ने माना, और अभी हमारे यहाँ 100% ये है कि कोई भी पेशेंट खाना नहीं खा रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग एवरी, जो हमारी डायलिसिस शिफ्ट एक डायलिसिस के बाद खत्म होती है, उसके बाद हम पूरी मशीन को जो है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन कराते हैं। जो हमारे पार्ट ए और बी के इनके कैन हैं उनको हम चेंज कराते हैं, और उसके बाद ही दूसरा पेशेंट, मशीन को 1% हाइपोक्लोराइड से क्लीन करने के बाद ही दूसरा पेशेंट जो है उस बेड पे लिया जाता है बेडिंग चेंज होने के बाद। जो डायलिसिस मशीन है उसको हॉट डिसइंफेक्शन करना इन बिटवीन द डायलिसिस बहुत जरूरी है। जब तक आप निडल निकालते हो, जब तक पेशेंट उठ के जाता है और बेडिंग चेंज होती है, दैट इज हार्डली 32 मिनट्स प्रोसीजर। with each machine you have to clean with the hot disinfection। और कम से कम नाइट में जब हमारी तीनों शिफ्ट या 4 शिफ्ट खत्म होती है तो हमें उस मशीन को हाइपोक्लोराइड से डिसइंफेक्ट करना है। और जो फ्रंट मशीन का टच स्क्रीन है हमारी, जिसको हम टच करते हैं, उसको हमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से एक कॉटन या गॉज पीस लेके पूरी तरह से क्लीन करना है। ऑल सरफेस टू बी क्लीन विद 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। जितनी भी ट्रॉली हैं, आपके काउंटर्स हैं, टेबल हैं, डोर हैंडल्स हैं, लैंडलाइन फोन्स हैं, लाइट स्विच हैं, वेट मेजरिंग मशीन के साइड हैंडल्स हैं, बार्स हैं, वो सब हमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करने हैं। ऑल द बिन शुड बी क्लियर आफ्टर ईच शिफ्ट। और जो फ्लोर मैपिंग है उसमें भी हमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करना है। जो पीपी है, जो आपका डायलिसिस स्टाफ है उसमें डायलिसिस स्क्रब जो करता है उसके बाद ग्लव्स डालने हैं, कैप डालना है, मास्क। जैसा कि हमारे यहाँ भी जो एम्स पैटर्न है, जो एम्स का सर्कुलर आया था कि भाई 1 महीने के लिए हमें 4 मास्क दे दिए गए हैं, और वो बाकायदा जो है एक उसमें प्लास्टिक पाउच में है। और उसके साथ ही हम लोगों ने उसमें जो है, जैसे डॉक्टर अम्बर ने बताया जी, फर्स्ट डे हमने डाला, उसके बाद 5वें दिन जो है वो दूसरा मास्क डालना है, तीसरा मास्क 10 दिन के बाद डालना है, चौथा मास्क 15 दिन बाद, और उसके 20 दिन के बाद जो है या 12 दिन के बाद फिर से वही पहले वाला मास्क हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोगों को मास्क N95 हॉस्पिटल ने दिए हुए हैं, और गॉगल्स डाले हुए हैं, ग्रीन कॉटन का गाउन डाला हुआ है, और शूज कवर पहने हुए हैं। जो हमारा स्क्रीनिंग एरिया है उसमें भी जो स्क्रीनिंग ऑफिसर बैठता है, जो नर्सिंग ऑफिसर बैठी है, वो भी सेम टाइप के जो है पूरे के पूरे कवर करके बैठती है। अगर हमें किसी पेशेंट को आइसोलेशन में करना है, सस्पेक्टेड है, तो उसके लिए हम लोग जो है लेवल 2 की किट जो है उसको यूज कर रहे हैं प्रेजेंट। और जो हमने आइसोलेशन है वो अपनी केटीयू जो यूनिट है जहाँ पे हमारे ट्रांसप्लांट होते थे वहाँ पे हमने बनाया हुआ है। वहाँ पे एक पोर्टेबल टैंक रखा हुआ है, वहीं पे एक डेडिकेटेड मशीन रखी हुई है डायलिसिस की। उस मशीन को हम वापस डायलिसिस यूनिट में नहीं ला रहे हैं, वहीं पे छोड़ा हुआ है, और टैंक को अलग से भर के फिर से ले जाते हैं। उस टैंक को हम आईसीयू में नहीं यूज कर रहे, आईसीयू में हमने दूसरा टैंक रखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने एक प्रोविजनल बनाया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Mr. Jain. मैं इसमें कुछ एक स्लाइड जो है वो मिस है इसमें, पता नहीं कैसे आई है, कैसे हुई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कैरी होम मैसेज है, हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। वियरिंग फेस मास्क, 3 लेयर मास्क, वियरिंग फेस मास्क जो कि 3 लेयर हो, कैप और फेस शील्ड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है डायलिसिस पर्सन का। यूज हैंड सैनिटाइजर बिटवीन द पेशेंट। अगर आपने एक पेशेंट का बीपी लिया है उसके बाद हैंड सैनिटाइजर जरूर यूज करें दूसरे पेशेंट पे जाने के लिए। और इफ यू आर सेफ देन द अदर इज सेफ, दैट इज द ओनली वे। अगर आप चाहते हो कि अपने आप को सेफ रखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी प्रोटेक्टिव वियर से उनको पहने। जैसे डॉक्टर अंबर ने कहा कि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि जो एकदम ही आपको लग जाएगी। अगर है कोई सस्पेक्टेड है तो उसको 14 डेज, मेरे यहाँ भी 1-2 पेशेंट आए हैं और हमने स्टाफ को 14 डे के लिए क्वारंटीन किया, और उनका 7 दिन बाद जो है हमने टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव निकला। देन वी हैव टेकन द स्टाफ बैक टू द डायलिसिस यूनिट। थैंक यू सर, थैंक्स। Thank you, Mr. Jain.
कुछ सवाल आए हैं बीच में जो शायद डॉक्टर अंबर also may want to answer. Can a person be a vector and not the host for COVID-19 virus? No, it has to be a patient. A person will be asymptomatic and a host for the virus, and therefore it's a vector because that's how it will transmit. Right. A host where your immunity is so strong that the virus is not able to replicate, but you are acting as a transmitting agent to a person whose immunity is low. You could be asymptomatic and be a host for the virus, and you could be spreading it. Yes, and we have heard the concept of super spreaders, where super spreaders, the person is not affected and goes around spreading the virus. एक और question आया, maybe Mr. Jain, you can answer. I want to know if my 4 to 5 patients were positive every month, then how to decrease positive cases. सर ये तो फिर मतलब जो है you are not taking the properly, मतलब आप उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, तभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो रही हो और पेशेंट जो है ट्रांसमिट फेस मास्क नहीं लगा रहे प्रॉपरली, तभी ऐसा पॉसिबल है. और जैसा कि डॉक्टर अंबर ने बताया, अगर आपके पास पेशेंट है जो कि पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हुई है कि उन पेशेंटों को हमें अपने यहाँ नहीं करना है. उन पेशेंटों के लिए अलग से सेंटर्स बने हुए हैं. आपका आरएमएल है, सफदरजंग हॉस्पिटल्स है, एम्स का ट्रॉमा सेंटर्स है जो कि डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स ऑफ द हीमोडायलिसिस. एक क्वेश्चन आया है, आई कवर करना जरूरी है? जी 100% जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. नहीं, 100% कवर करना जरूरी है. और रिपीट क्वेश्चन आया कि whether all regular patients should have compulsory test for COVID-19, जिसका आंसर पहले ही पैनल ने कर दिया है. नहीं सर, ये तो पहले ही डॉक्टर अंबर कह चुके हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये ऑल डिपेंड्स ऑन द कि आपके जो कंसल्टेंट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी क्या पॉलिसी है. जी, थैंक यू सो मच मिस्टर जैन. और प्लीज कीप एन आई ऑन दी चैट बॉक्स Q&A और आप वहां से भी आंसर कर सकते हैं. Moving over to the next topic, Mr. Satender, you would like to share your screen now. Okay. Just a minute, sir. So, yes, we can see your screen. Good afternoon to all of you. Hello. Hello. Yes, we can hear you. Hello. Thank you. Yeah. First of all, I thanks to Dr. Ambar Khera for giving his valuable time to us. Thank you very much, sir. On the behalf of all Dialis technologists, I thanks to the whole team of Polymed for arranging that webinar for Dialis technologists. These type of platforms are very good for Dialis technologists. Through this platform, we can update our knowledge and we can exchange our experience to each other, and that will be beneficial for our society and our patient. Today, my topic is the latest guidelines for the Dialis technologists. At present, first of all, I want to clear that the history of COVID-19 is just 6 months old. So there is no any research or no any trial has been done on COVID-19. So whole world, पूरी दुनिया अपने तरीके से COVID-19 के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है. Indian Society of Nephrology has given some guidelines on the basis of information they receive from the across. So I will try to focus on some important point. First of all, I want to... Yes, sir? Excuse me. Yes. Mr. Satender, यहाँ पे जो audience है वो largely हिंदी में आप बात कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स बात कर सकते हो. Okay. Thank you so much. Okay.
This slide is for the newcomers. I want to clear the full form of the COVID-19. CO stands for the corona, VI stands for the virus, and D stands for the disease. And it identified in 2019. So nickname is COVID-19. First of all, हम जितने भी हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं, हम उनको सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि प्लीज डू नॉट मिस योर डायलिसिस सेशन. अकॉर्डिंग टू द नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी आपको एडवाइज किया है ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, प्लीज अभी जब तक ये क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई भी विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट प्लीज कंटिन्यू योर सेशन. ऐसा ना कुछ पेशेंट आते हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वे सोचते हैं कि हफ्ते में 3 की बजाय मैं हफ्ते में 2 डायलिसिस करा लूंगा, आई विल बी फिट, या हफ्ते में 1 करा लूंगा, मुझे लगता है मुझे ठीक रहूंगा. हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या लेट नाइट ओड आवर्स में आपको प्रॉब्लम ड्यू टू द हाइपरकलेमिया और ड्यू टू द फ्लोरोलोड, तो उस टाइम पे आपके जो सेंटर में हो सकता है आपको स्लॉट ना मिले, आपको टाइम ना मिले, और नो एनी डायलिसिस सेंटर विल नॉट रिसीव यू, और दे विल आस्क द रिपोर्ट फॉर द COVID-19 और एज वेल एज वायरल मार्कर रिपोर्ट, दैट विल टेक टाइम. तो वो टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए हमने सभी को एडवाइज किया प्लीज कंटिन्यू योर रेगुलर सेशन. एंड स्ट्रिक्टली अभी डॉक्टर अंबर ने भी बताया, कोई भी अटेंडेंट is not allowed inside the dialysis unit. Receiving area is a new creation due to the COVID-19. पहले ये नहीं था, अभी ये बनाया गया और सभी जगह बनाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है. वहाँ रिसीविंग एरिया के अंदर टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर और एक बायोमेडिकल वेस्ट बॉक्स विद येलो बैग, ये वहाँ पर होना बहुत जरूरी है. और जो रिसीविंग एरिया है उस एरिया के अंदर हम जो भी एक हमारी सीनियर सिस्टर्स है या सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट है, और हम इन आवर सेंटर हमने एक ऐसा JR को वहाँ पे बैठाया हुआ है, वो सब चेक करते हैं पेशेंट को. ये एक तरह से हम लैब, आई वांट टू से दैट इज द डायग्नोस्टिक एरिया. वहाँ हम डायग्नोज कर सकते हैं, 50% हम बच सकते हैं अपने आप को अगर पेशेंट को ठीक से स्क्रीन करें. पेशेंट का रिसेंट जो भी फीवर है, गला खराब है, खांसी है, सांस लेने में विदाउट इंटरडायलेटिक वेट गेन और सांस लेने में प्रॉब्लम है, या रिनोरिया, मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम है, वहाँ पे सारी बार बार एक ही पेशेंट को हर बार आएगा ये सवाल पूछते हैं. कभी कभी पेशेंट इरिटेट हो जाता है, कोई बात नहीं, बाकी उनसे ये सवाल बार बार पूछना है. फॉर्म कुछ सेंटर ने तो फॉर्म भी भरने शुरू कर दिए हैं, वो सब भर के पेशेंट से भी साइन कराते हैं उस पर. ये सब हिस्ट्री लेते हैं. अगर आपको जरा सा भी डाउट कहीं लगता है तो पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं इमरजेंसी के लिए, और वहाँ पर प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद हम डायलिसिस में लेते हैं. हमारा हॉस्पिटल तो वैसे भी डेडिकेटेड फॉर कोरोना उसके लिए हो गया, COVID-19 के लिए हो रहा. वी आर डूइंग द डायलिसिस फॉर द COVID-19 पेशेंट, और रेगुलर जो पेशेंट हैं उन सबको इधर उधर शिफ्ट कर दिया है. उनके साथ इस टाइम पे अन्याय हो रहा है, तो कोई नया सेंटर उनको ले नहीं रहा है. अब हमारे HOD उनको लिख के दे रहे हैं कि ये पेशेंट बिल्कुल सेफ है और आप ले लो, तब उनको साथ कुछ हो रहा है. अदरवाइज स्क्रीनिंग एरिया में हम पेशेंट को ये सब चेकअप करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है, देन वी ट्रांसफर टू द डायलिसिस यूनिट. और बाकी हिस्ट्री पेशेंट के साथ, जो पेशेंट का अटेंडेंट आया, उसकी फैमिली आई है, वे किससे मिले, ये सारा बहुत मैटर करता है उसको डिसाइड करने के लिए पेशेंट कहाँ था. और वेटिंग एरिया आजकल होना नहीं चाहिए. वैसे वेटिंग एरिया के लिए अधिकतर लोग मना करते हैं कि नो एरिया फॉर वेटिंग. पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है उसको हम बाहर ही कर देते हैं. आप बाहर अपनी गाड़ी में वेट करिए, पार्क में वेट करिए, रिसेप्शन पे वेट करिए. वेटिंग एरिया एक ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होने के. पेशेंट के लिए मजबूरी है कि आप पेशेंट को कोई छोड़ के चला गया, एम्बुलेंस छोड़ के चली गई, अब उसको कहीं जगह नहीं है तो पेशेंट बैठेगा. बाकी वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और अटेंडेंट को वहाँ भी हम अलाउ नहीं करते कि पेशेंट वहाँ रहेगा, अटेंडेंट बाहर ही रहेगा. और पेशेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम उनको बाहर ही उसको बता देंगे. वेटिंग एरिया में भी हमारे पास टिश्यू पेपर है, हैंड सैनिटाइजर है, या हैंड वॉशिंग का एरिया, ये सब वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए.
प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। ये दोनों के लिए है, पेशेंट के लिए और डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, डायलिसिस स्टाफ के लिए। अब पेशेंट के लिए 3 लेयर फेस मास्क, आजकल मास्क इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर पेशेंट के लिए मैं अभी बताना चाहूँगा फिर से कि मास्क की इम्पोर्टेंस क्या है। कि पेशेंट कुछ लाते हैं कि पेशेंट ने मास्क तो लगाया है पर वो प्रॉपरली फेस को कवर नहीं किया। किसका मास्क यहाँ पे होता है, किसका मास्क मुंह से नीचे यहाँ लगा होता है। मास्क लिया है, उसका कोई रोल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मास्क को पूरा मुंह को कवर करके रहना चाहिए, तब मास्क है। अगर पेशेंट ने मास्क लगाया है और टेक्निकल स्टाफ ने या कोई सिस्टर है या डॉक्टर्स ने मास्क नहीं लगाया, तो मैं बता दूं देयर इज 30% चांस टू गेट द इन्फेक्शन। और अगर आपने मास्क लगाया, बेशक आपने N95 मास्क लगाया, पेशेंट ने मास्क नहीं लगाया, देन चांस विल बी 70%। और अगर दोनों ने मास्क लगाया है, पेशेंट ने मास्क लगाया और आपने भी मास्क लगाया, चांस विल बी ओनली 1 to 2%। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मास्क के लिए। हम सबसे पहले पेशेंट को अगर आता है तो पेशेंट के पास मास्क नहीं है तो उसको सबसे पहले मास्क प्रोवाइड किया जाता है। मास्क लगा कर लाए थ्रू आउट 4 आवर्स, जब तक आप पेशेंट वहाँ रहेगा मास्क लगा के रहेगा। हैंड वॉशिंग और कफ टेक्निक, आजकल सभी टीवी चैनल्स में आ रहा, सब आ रहा, उस पर टेक्निक क्या है, उससे बचाव कैसे, वो सब पेशेंट को बार बार बताना पड़ता है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं, आजकल सभी घरों में भी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही स्टाफ के लिए है 3 लेयर फेस मास्क का आजकल कोई रोल। हमारे यहाँ तो N95 मास्क, और अभी मिस्टर जैन ने बता दिया कि हम 4 या 5 मास्क हमें दे दिए गए 1 महीने के लिए। और जो जनरल है हमारे यहाँ मास्क पहन के, अगर वो N95 मास्क के ऊपर भी 3 लेयर मास्क लगा के, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड-19 के पेशेंट है, तो एक अंदर जाने के बाद पेशेंट को बाहर जैसी करके आए तो वो डिस्कार्ड करते हैं, उसको फिर नया मास्क दिया जाता है। और पूरी डिस्पोजल गाउन वहाँ पे स्कैनिंग एरिया में या ऐसे नॉर्मल उसके लिए, और अंदर तो पूरी किट हमारे यहाँ प्रोवाइड की गई है। ग्लव्स और हैंड वॉशिंग, डायलिसिस टेक्नीशियन हैंड वॉशिंग की टेक्निक के बारे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज द कंप्लीट पीपीई किट। मिस्टर जैन ने इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह बता दिया। बाकी ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें प्रोवाइड की गई है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है, और इसका पूरी तरह से यूज होना बहुत जरूरी है, और हम कर रहे हैं फॉर सेफ्टी मेजर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट, क्योंकि वी आर हैंडलिंग टोटल कोविड-19 पेशेंट। हमारे यहाँ डेली अबाउट 24 डायलिसिस हम कोविड-19 पेशेंट का कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में हम चला रहे हैं, 6 मशीन चला रहे हैं, कभी कभी 5 पेशेंट रह जाते हैं, कभी 6 होते हैं। तो 3 लेयर फेस मास्क थ्रू आउट, वो पेशेंट के हम सब पहले पेशेंट को एंटर करने से पहले हम अपने जो वार्ड बॉय है उसको बोलते हैं कि पेशेंट को लेके ही जब आना है, जब उसके ऊपर मास्क हुआ। और स्टाफ को तो हम एंटर उस रूम में डायलिसिस यूनिट में एंटर करने से पहले पूरी किट उसको पहना के तब वो पेशेंट अंदर जाता है आइडियली। और अगर आपके पास कहीं पर ये मैं अपने यहाँ बता रहा हूँ, हमारे यहाँ टोटली उसके लिए हो गया कोविड-19 के लिए। इफ इन अदर सेंटर देयर इज नो प्रॉब्लम है, पेशेंट अभी लाइफ और डेथ का सवाल है, तो पेशेंट शुड बी डायलाइज इन आइसोलेशन रूम, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट टू पेशेंट डायलिसिस। तो आपने देखा होगा कि कहाँ पे हमारे डायलिसिस यूनिट में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये वैसे ही फैलते हैं, तो ब्लड बोर्न डिजीज है। बट अभी ये तो नई प्रॉब्लम आ गई कि ये आप एयरसोल भी हो गई है, टच करने से भी हो गया। तो आइसोलेशन इज मस्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने आइसोलेशन के लिए इसको बोला है, और स्ट्रिक्टली यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेने के लिए। और अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आपके पास आइसोलेशन है, लाइफ और डेथ का सवाल है भी आपको करना है, तो उसको लास्ट शिफ्ट के लिए हम एडवाइज करते हैं। और लास्ट शिफ्ट तक भी वो नहीं रुक सकता, अभी फ्लूइड ओवरलोड है, अभी करना है, तो लास्ट बीच का एक बेड हटा दीजिए और उसमें साइड स्क्रीन से कवर कर दिए, वहाँ पे हम पेशेंट को लगा के और डायलिसिस कर सकते हैं। और स्टाफ के लिए पूरी किट वहाँ पर होना चाहिए। डिसइंफेक्शन एंड सैनिटाइजर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ हर शिफ्ट के बाद ठीक से मशीनों को और वहाँ पे फ्लोर क्लीन को वो पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। और नाइट में हम पूरी डायलिसिस यूनिट को
फ्यूमिकेशन होता है और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरा सैनिटाइज किया जाता है। और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस मिस्टर जैन ने पहले ही बता दिया, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और जो हैंड वॉशिंग की स्टेप्स थे, अभी तक 6 स्टेप हमारे डाइस टेक्नीशियन करते थे, जब से कोविड-19 आया अब 7 स्टेप्स हो गए। ये रिस्ट वाला स्टेप्स एडिशनल हो गया। Disinfection and disposal practice, all dialysis technologists are aware about it. Biomedical wastage के बारे में, inside dialysis unit, clean and disinfect and frequently touch surface at least after every shift. और हमारे यहाँ हर 3 घंटे में एक वार्ड बॉय है जिसका यही ड्यूटी लगी है, वो कुछ नहीं करेगा कि ये सब चीज़ों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या सैनिटाइजर, हमारे यहाँ तो सैनिटाइजर से वो सब यूज कर रहे हैं। सबको हमारे फोन है, नर्सिंग टेबल है, डायलिसिस मशीन है, डोर नोब्स है, लाइट स्विच है, काउंटर टॉप्स है, इन सबको, और टॉयलेट स्पेशली सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया जो होता है वहाँ पर, इन सबको क्लीन किया जा रहा है। वहाँ एक डेडिकेटेड स्टाफ, उन स्टाफ को उस एरिया से अलावा और कहीं नहीं जाना। पेशेंट को रिसीव करने के लिए टेक्निकल वार्ड बॉय अलग है और इन चीज़ों के लिए वार्ड बॉय अलग है। पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जो CAPD के पेशेंट हैं उनके लिए अलाउ, यही सजेस्ट आजकल हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि आप कंटिन्यू अपने घर पे रहिए। और जो आपका CAPD का जो प्रोसीजर बताया, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार जो भी CAPD के आप करें, और जो परसेंटेज है 2.5% है या 1.5% है या ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर फ्लूइड ओवरलोड, वो आप करते रहिए। तो आप अभी भी घर से बाहर ना जाएं, आप कंटिन्यू रखिए। बस ध्यान रखिए कि आपका CAPD के बैग प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोचें कल मंगा लूंगा और आजकल सब ये प्रॉब्लम हो रही कि नहीं आ पाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपना पूरा स्टॉक रखिए और लाने से पहले उसको अगर कोशिश करिए कि उसको बाहर से बाहर एक बार सैनिटाइज कर ले, बैग को क्लीन करके तब अंदर लेके आए, क्योंकि इम्यूनिटी आप लोगों की वैसे भी कम होती है। तो आप CAPD आप करते रहिए। और जो नए पेशेंट है CAPD के, अभी तक हमारे यहाँ तो सभी मना कर रहे हैं, अधिकतर सेंटर में कोई भी न्यू CAPD के लिए कैथेटर अभी कोई नहीं डाल रहे, सब मना किए जा रहे हैं। एक्यूट PD के जो है, वो जो एडमिटेड पेशेंट है उनको करना पड़ेगा। जो IPD पेशेंट है, जो उनको डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, तो एक्यूट PD वो एडमिट पेशेंट के लिए जैसा भी डॉक्टर्स हमारे एडवाइज कर रहे हैं, वो तो मजबूरी है, लाइफ और डेथ का सवाल है, उनको करना पड़ रहा है। एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट है, all modalities of renal replacement therapy may be used according to the clinical status or according to our nephrologist जो भी उनको एडवाइज कर रहे हैं। But I want to say these modalities should be provided to them on the priority basis. कोई डिले नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो ARF के पेशेंट है, दे कैन बी क्योर फॉर द लाइफ टाइम। इनको वो सारी प्रायोरिटी, जो भी फैसिलिटी है वो प्रायोरिटी बेसिस पे मिलनी चाहिए। तो वी कैन डायलाइज पेशेंट ऑन बेड साइड और ICU में अधिकतर हम यूनिट में हमारे RO का कनेक्शन है, अदरवाइज आप पोर्टेबल RO वाटर टैंक ले जाके हम कहीं भी बेड साइड उनको डायलिसिस कर सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड देन वी कैन गिव CRRT और हाई वॉल्यूम हेमोफिल्ट्रेशन। And also if nephrologist suggest and required a patient in septic shock or very cytokines reduction के लिए we can use the cytosorb or oxidized filter. These are very costly. And once again, I want to request to government of India and our nephrologist, Dr. Ambar is listening to me, and dialysis technologies industries, please try to cut down the cost of these filters, of these modalities, because so many patients cannot afford the cost of these filters. And I hope हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी एक स्लोगन दिया है, ग्लोबल टू लोकल। आई होप our dialysis technology industry will try to produce these filters in India, and then not only we can save our economy, but also we can save so many needy and poor patients. Sign or symptoms, ये बड़ा डाउटफुल केस है। अभी तक ये बोलते हैं कि विदिन 14 डेज इनके सिम्टम्स आ जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, मैंने कम से कम
15-16 पेशेंट को इंटरव्यू लिए हैं वहाँ पे, किसी पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। सब कोई पेशेंट नहीं कहता कि मुझे खांसी, किसी पेशेंट को फीवर नहीं, हमारा बहुत रेयर है, और किसी कोई नहीं बताता मुझे खांसी है। बाकी अभी तक जो हिस्ट्री मैंने पहले बताया, इसके कोविड-19 के ऊपर अभी बहुत सारे ट्रायल अभी ऐसा सब चल रहे हैं, पूरा होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट देम। अभी तो रिसर्च चल रही है, अभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया। बाकी जो कॉमन सिम्टम्स है वो फीवर है, कफ है, शोर है, थ्रोट है, ब्रेथलेसनेस है, मसल्स है, ये सब उनके सिम्टम्स हैं। एंड ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है? पर्सन टू पर्सन, इसलिए हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। बिटवीन पीपल क्लोज कांटेक्ट में अगर मेरे को है तो मेरी वाइफ को होने के चांस ज़्यादा होंगे, बच्चों को होने के चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए क्वारंटाइन का वो किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो थ्रू रेस्पेक्टेड ड्रॉपलेट्स, ये तो ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप खांसी के टेक्निक और या वो उसके लिए हम बचाव रखें। एक टिश्यू पेपर आजकल सभी साथ रखते हैं। बाई इन्फेक्टिव सरफेस, कहीं कोई इन्फेक्ट करके गया तो हमें ध्यान रखना हमें कहाँ बैठना, कैसे टच करना, या टच करने के बाद अपने फेस को टच नहीं करना। इन्फेक्टेड पर्सन कफ, ये ठीक, ये सब एक टेक्निक है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कंट्रोल कोविड-19, ये मिस्टर पीके जैन ने अच्छे से बता दिया, तो इसके लिए मैं टाइम नहीं लूंगा, ये स्लाइड मैंने डिलीट मार दी है। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर 20 मिनट सेकंड तक हमें साफ करना है। यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, जो सभी आजकल घरों में भी यूज होने लगा, हॉस्पिटल के तो बात ही छोड़ो, तो 60% अल्कोहल के लिए। कवर योर कफ एंड स्नीजिंग, ये बार बार हमारे सभी एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, टीवी में भी सब बता रहे हैं, सब अच्छी तरह से जान ही गए हैं। इमीडिएटली थ्रोट टू, जो बायोमेडिकल वेस्ट जो टिश्यू है, इसको हमें सोसाइटी में, हमें घरों में बताना पड़ेगा, उसको यूज करके ऐसे नहीं फेंकना, उसको उसका प्रॉपर वेस्टेज ये हमें अपने घरों में बताना पड़ेगा, तो उसको किस तरह से डिस्कार्ड करना। अवॉइड एक्सपोजर, हम अपने आप को बचा के रखें, तभी हम दूसरों को सर्विस दे पाएंगे। तो हमें बचना है, अपने आप को बचना है, और स्पेशली हमने कहीं टच किया तो हमें फेस, आईज, नोज और माउथ, क्योंकि यही एक एरिया है जिससे ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है। पहले हम बचते थे कि नीडल स्टिक इंजरी से बचते थे, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, ये सब हमारे ब्लड के थ्रू होता था, ब्लड बोर्न डिजीज थी। बाकी ये ऐसी डिजीज चाइना ने प्रोड्यूस कर दी है कि जो हमारे वैसे ही टच होने से भी हमारे अंदर माउथ इस एरिया से जा सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। आपने अभी कोई भी ऑब्जेक्ट टच किया है, हैंड रेल्स, डोर हैंडल, डोर बेल, तो उसके बाद हमें अपने आप को हाथों को ठीक से वॉश करना या सैनिटाइजर से। डू नॉट शेयर फूड, ये डॉक्टर अंबर ने भी बोला और मिस्टर पीके जैन ने भी बोला, किसी भी डायलिसिस यूनिट में खाना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये एक मिस्टर पीके जैन ने अच्छे से बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। अवॉइड सेकिंग हैंड, हमें अपनी पुरानी कल्चर पे आना पड़ेगा। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए, या आपको किसी को सैल्यूट मारना, आप सैल्यूट कर सकते हैं। रेस्पेक्ट देनी है, आप झुक के उसको दूर से हम ये करिए। आप जो पुराना सिस्टम था, या किसिंग वाला या गले हगिंग वाला, वो सब छोड़िए, उससे बीमारी। अब ये नया कोविड-19 आ गया, तो थोड़ा सा अपनी कल्चर पे आइए, हाथ जोड़कर नमस्कार करिए, वो ज़्यादा बेटर है। वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और सभी पेशेंट का फ्लू शीट एक सबने बनाया हुआ है कि उसको कब हिस्ट्री, हर डायलिसिस के बाद उसकी सारी हिस्ट्री वो लेकर रखें। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, आप तैयार रहिए, अवेयर, जानकार बनिए, और पहले से आप तैयारी रखिए। ऐसा नहीं कि पेशेंट आ रहा और आप जल्दी में आप कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप मिस कर जाएंगे, और यू मे बी इन्फेक्टेड। तो बी रेडी, बी एवर एंड बिफोर। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Satender. In between, thank you so much. In between, कुछ questions आ गए हैं, तो I would request Dr. Ambar, Mr. Jain, questions and Mr. Satender. Answer या क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उसके पहले मैं शर्मा जी से, एक तो ये जो 3-ply मास्क है, ये 3-ply मास्क एसिम्प्टोमेटिक रेगुलर डायलिसिस पेशेंट्स जो आ रहे हैं यूनिट में, उनके लिए तो ठीक है जी।
पर अगर आपके पास सस्पेक्टेड पेशेंट है जिसका आपने टेस्ट भेजा है और उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, जी ये 3 प्लाई मास्क में लीकेज बहुत है, इसको 3 प्लाई मास्क अलाउ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको 95 पहनना पड़ेगा। और वर्स्ट के सिनेरियो में N95 नहीं है तो KN95 पहनना पड़ेगा। KN95 में क्या है ना, आउटसाइड लीकेज नहीं होती है, राइट सर 8% की जो इनवर्ट लीकेज है वो उसको ही, अगर वो पॉजिटिव निकला तो उसके अंदर ही रहेगी वो। जी तो KN95 या N95 के बिना सस्पेक्टेड पेशेंट को डायलिसिस पे नहीं लेना है, नहीं ले सकते नहीं लेना है। 3 प्लाई मास्क इज नॉट गुड इनफ। 3 प्लाई मास्क इज गुड इनफ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और 3 प्लाई मास्क जो है उसको अगर उसको आप पहनते हैं आम पब्लिक के लिए भी, और ये टेक्नीशियंस को ये नॉलेज डिसेमिनेट भी करनी चाहिए। जी उसकी हाफ लाइफ जो है या उसकी लाइफ है 8 घंटे तक की है, 8 घंटे मैक्सिमम। यस सर तो वो जो निकलता है घर से, अगर उसका 1 घंटा आने का टाइम है और उसका पहन के निकला है और जी 4 घंटे डायलिसिस में रहता है या आधा घंटा वेट करना पड़ता है, तो एक 3 प्लाई मास्क वो 8 घंटे के लिए सफिशिएंट है, 6 घंटे के लिए। और ये डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए 3 प्लाई मास्क नहीं है। नहीं है डायलिसिस टेक्नीशियंस ओनली N95, नॉट इवन KN9, नॉट इवन KN95, ओनली राइट N95। सर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है, मैंने देख जी और क्या क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, N95 मास्क को Can you ऑटोक्लेव करने के बाद यूज कर सकते हैं क्या? Yes, you can यस do. यूज कर Yes, you can. सकते हैं Yes, you can do that. There was another question saying that मैं घर जाने के बाद क्या केयर ले सकती हूँ घर वाले के साथ, because once you go back we are all talking about the work environment, how to protect ourselves in the work environment. What do we do after work when we go home? So, That's the question. So actually when the dialysis technicians, when they are working in the hospital, वो अपने कपड़े नहीं पहनते हैं ना घर के। They have already changed and they are in they get the dresses and everything which is required when they dialyze, and when they go back and उन्होंने hand sanitize किए, मास्क पहना हुआ है, अपने पूरे precautions लिए हैं, वापस अपने कपड़े पहनते हैं, जो कि उस एरिया में गए ही नहीं है, उस डायलिसिस थेरेपी एरिया में गए ही नहीं है, कपड़े पहन के जा सकते हैं। ये मिथ है कि जाते ही घर में घुस जाओ, जूते बाहर उतार दो और नहा लो। आपके शरीर से आपके जूते का एक तो सरफेस पे वैसे ही वायरस रहेगा नहीं उतने घंटे, ऊपर से अगर आपके जूते के नीचे आ गया, 8 घंटे की ड्यूटी करके जा रहे हो तो 8 घंटे वैसे नहीं बचेगा। तीसरा, वो वैसी जूता जो है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ है, वैसे ही आपसे आपकी हाइट के हिसाब से 6 से 8 फीट ऊपर है। दूसरी एक ये मिथ है कि घर घुसते साथ नहा के सारे कपड़े उतार के आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और फिर नए कपड़े पहन के आ जाइए। संभव नहीं है, अधिकांश घरों में ये संभव नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये संभव होगा भी नहीं। संभव एक ही चीज है कि आपको जो अस्पताल जो ड्रेस दे रहा है वो पहनिए और वो वहीं पे रोटेट होगी, वही वॉश होगी, वही ऑटोक्लेव होके या धुल के आएगी और आप अपने कपड़े जो है वापस घर पे ले जा सकते हैं और घर वालों के साथ रह सकते हैं। आपके घर वालों की सेहत आपके ऊपर निर्भर करती है, इसलिए डायलिसिस टेक्नीशियन अगर प्रिकॉशन नहीं लेते या लापरवाही बरतते हैं तो वो अपने परिवार के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एवरी डायलिसिस टेक्नीशियन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी of the patients, but is also responsibility of the safety of their own family members if they are staying in a family. ज्यादातर सेंटरों पे जो है डायलिसिस के जो टेक्नीशियंस हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है वो कलर्ड अलग कोडेड है और वो वहीं हॉस्पिटल में जाने के बाद चेंज करते हैं। जैसे ही वो अपनी शिफ्ट खत्म करते हैं उसके बाद वो लॉन्ड्री में चले जाते हैं एंड अगेन दे विल कम नेक्स्ट डे फॉर मी। Exactly. So they can दो तीन जोड़ी ड्रेस मिली हुई है ताकि वो अगर एक जोड़ी नहीं आएगी तो दूसरी आपके पास तैयार रहेगी नेक्स्ट डे। How much death rate? US में about 6.5%, इंग्लैंड में about 10%, 10% इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन एजेड है। इटली में डेथ रेट ज्यादा क्यों था? क्योंकि पॉपुलेशन की एज ज्यादा थी। एज को जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है एज केयर का। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, एक उम्र के बाद 70 साल के बाद आप एज केयर में चले जाते हो जहाँ की गवर्नमेंट आपको पे करती है। इंग्लैंड है जैसे जहाँ पे NHS है, वहाँ पे सारी आपकी चीजें जो है वो गवर्नमेंट देखती है। नर्सेज भी एम्प्लॉय होती है जो आपके दवाइयाँ देती हैं। एज केयर सिस्टम में जो रोग रहते हैं उस उम्र में एज पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए इंग्लैंड में मोर्टेलिटी जो है 10% है, पर इंडिया में अभी जो मोर्टेलिटी का डेटा है रफली 3.5% के आसपास है। ये हो गया डेथ का। विच डायलिसिस मोडालिटी इज बेटर फॉर कोविड? MHD और स्लेड। ये तो पेशेंट के वाइटल्स पे डिपेंड करेगा। अगर वाइटल स्टेबल है तो MHD और अगर वाइटल अनस्टेबल है तो स्लेड। लेकिन स्लेड जो है वो OPD थेरेपी नहीं होती है, स्लेड IPD थेरेपी होती है। तो स्लेड अगर IPD थेरेपी होगी तो आइसोलेशन में होगी। किसी पेशेंट का BP फॉल होके इस स्टेज पे आ गया है कि उसको आइनोट्रोप्स की जरूरत पड़ रही है और उसको स्लेड की जरूरत पड़ रही है तो ही हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ कोविड सस्पेक्ट। तो उसको कोविड सस्पेक्ट की तरह एडमिट करके आइसोलेशन में लेके डायलाइज करिए जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। Is COVID-19 more severe than TB? No, TB has killed more in India than COVID-19 ever will. It is not about severity. It is not about severity, and the two diseases cannot be compared. Tuberculosis is a bacteria.
and we have antibacterial therapy and established line of treatment for TB unless it becomes multi-drug resistant. In COVID-19, we have no therapy right now. So COVID-19 is more severe in terms of spread because it spreads very fast. TB does not spread like this. And in terms of mortality, because it kills also very fast. Most of the patients don't want to use a surgical mask and only want to use a cloth mask. You can please tell them that they can go to another dialysis center, bluntly. We will not dialyze them. You can refuse to dialyze them if they don't comply because your safety is important. The least they have to wear is a 3-ply surgical mask. That's the minimum. Cloth mask is not acceptable. In a dialysis scenario, cloth mask is acceptable for the community. But for the community, it gives them a pseudo sense of security. एक गलत फहमी है कि मैं ये कपड़ा बांध के घूम रहा हूँ तो मैं सिक्योर्ड हूँ, पर ठीक है गलत फहमी में जी रहे हैं, वो हेल्दी पेशेंट्स हैं, घूम रहे हैं, शॉपिंग या ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, वहां तक तो चल जाएगा. पर ये जो क्रिटिकली और डिएबिलिटेड डायलिसिस पेशेंट्स हैं, ये बड़ी जल्दी इन्फेक्ट होते हैं. इनके लिए ये संभव नहीं है कि ये क्लॉथ मास्क पहन के डायलिसिस यूनिट में घुस जाएं. इट इज नॉट सेफ. अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर निकले, वो स्प्रेड भी कर सकते हैं. और कोई क्वेश्चन है? Then why are we not aware for? नहीं, आप ट्यूबरकुलोसिस को इसमें बीच में लाके मत लाइए, क्योंकि वो टॉपिक ही अलग है, चैप्टर ही अलग है, और टीबी ऐसे स्प्रेड नहीं होते कि इतनी फास्ट स्प्रेड नहीं होती है जब तक कि वो एक्टिव कैविटेटरी लीजन नहीं हो. बहुत सारे टाइप की टीबी होती है, 90% ऑफ द टाइप की टीबी तो स्प्रेड ही नहीं होती आपस में एक दूसरे को. और एक मेरा शर्मा जी से सवाल था, ये हाइपोक्लोराइड सर बनाते कैसे हैं? बहुत सारे डायलिसिस टेक्नीशियन आपको सुन रहे होंगे, ये मालूम तो है. हाँ, ये बताइए. 900 ml वाटर और 100 ml है मैं सोडियम हाइपोक्लोराइड मैं बताता हूँ सर. मैं क्लियर कर देता हूँ. इसके लिए मैं वही क्लियर कर देता हूँ सर. ये हमारे यहाँ पे 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड की स्ट्रेंथ आती है सर. तो उसको हम 20 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड और 80 ml वाटर लेंगे सर. तो ये 100 ml हो जाएगा. ये होगा 1% सर. शर्मा जी एक सेकंड ब्रेक कर रहा हूँ. ये वाली चीज जो है आप बड़ा धीरे धीरे आराम से समझाइए, क्योंकि यहाँ पे 100 लोग और सुनना चाह रहे हैं. 120 टेक्नीशियन जूनियर जो आपसे सीखना चाहते हैं कैसे बनाना है इसको. थोड़ा धीरे धीरे बताइए प्लीज. मैं फिर से बताता हूँ सर. हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 5% की स्ट्रेंथ में सोडियम हाइपोक्लोराइड अवेलेबल है. तो उसको हम 20 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड लेंगे और 80 ml वाटर लेंगे, तो दैट विल बी द 1%. और अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो 200 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड और 800 ml वाटर लेंगे. वैसे इसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है. मैं किसी भी स्ट्रेंथ में आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड आ रही है, एक बहुत इजी फार्मूला है, मैं वो बता देता हूँ. उसके लिए एक मैं अभी A = D × Q/H. सर ये एक मैं बता देता हूँ एक फार्मूला, जिसमें A जो हमें ये A = D × Q/H. तो ये एक फार्मूला है. इसमें हमें A जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए, अमाउंट, जो A फॉर अमाउंट, मैं अभी ये सब लिख कर बता देता हूँ. A = amount of disinfectant. Amount of disinfectant और D = desired strength. ये देखिए सर, ये फार्मूला है, और इसमें जो भी हमें चाहिए, कोई भी स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल है, तो इससे आपको वो फार्मूला मिल जाएगा. ये देखिए मेरे पास अगर ये 5% की स्ट्रेंथ आती है, तो इससे 200 ml चाहिए हमें. थोड़ा रोक के रखिएगा, दिखेगा जी क्लियरली. बिल्कुल ठीक है. स्क्रीन क्लियर दिख नहीं रहा है. एनीवेज, अगर कोई दोबारा पूछना चाहता है ये सवाल, तो वो क्वेश्चन एंड आंसर में पूछ सकता है, या शर्मा जी को पर्सनली फोन करके भी पूछ सकता है. नहीं सर, ये शायद बिल्कुल क्लियर आ गया. अब देख लीजिए सर, ये फार्मूला है. इस फार्मूले से आप किसी भी स्ट्रेंथ को आप बना सकते हैं. और वैसे बता दूं सर, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, वो 1% हाइपोक्लोराइड हम हॉस्पिटल में आजकल कुछ लोग घरों में भी करने लगे हैं.
तो के एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं, तो उसके लिए घर के लिए 1% ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो हॉस्पिटल में करते हैं आप वहाँ देखेंगे कि ड्राई होने के बाद मशीनों के ऊपर एक व्हाइट लेयर जम जाती है। वो घरों में भी, घर के लिए जो WHO की गाइडलाइंस है वो 0.1% है सर। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा 20 ml। यस सर। अच्छा, एक सवाल आया था कि कैन वी थिंक मोर अबाउट अवर डाइट, लाइफस्टाइल एंड स्लीप? यस, एंड इंस्टेड ऑफ मेडिसिन एंड मास्क cannot be replaced. There is no medicine, पहली चीज। मास्क आप रिप्लेस कर नहीं सकते हैं, ना करना चाहिए, करेंगे तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। डाइट, लाइफस्टाइल एंड स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। मेरे ख्याल से सलोनी इज विद अस। डाइट के बारे में अगर कुछ सलोनी आप बताना चाहते हैं, फॉर बैलेंस डाइट फॉर अ किडनी पेशेंट and to keep them immune levels, and how much protein should be taken, and what kind of a lifestyle they should adopt. Over to you, Saloni. Thank you so much, sir, and good afternoon to everyone, and a big salute to all the doctors and the paramedics in this COVID-19 times. So as we are discussing कि एक healthy diet ऑलरेडी एक डायलिसिस पेशेंट को क्या लेनी चाहिए, और जब से ये एडिशन हुआ है कोविड-19 का, तो उस टाइम में हमें क्या स्पेशली डाइट फॉलो करनी है, आज मैं ये सभी टेक्नीशियंस को बताऊंगी, बिकॉज टेक्नीशियंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल नॉट ओनली इन एजुकेटिंग द पेशेंट को एजुकेट करने के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन आज यहाँ पे आपको मिल रही है उसको आप अपने पेशेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे गेट अ प्रॉपर नॉलेज एंड जैसे सर ने बताया कि बहुत लोगों को मिथ्स और फैक्ट्स भी, मतलब मिथ्स भी होते हैं कि हमें ये खा लेंगे, जिंजर खा लेंगे, गार्लिक खा लेंगे तो उससे बेटर हो जाएंगे। कैसे बेटर होंगे वो सब फैक्ट्स आज मैं आपके क्लियर करूंगी। डायलिसिस पेशेंट वन मस्ट हैज टू टेक अ कैलोरी रिच डाइट, जिसमें अपना गेहूं का आटा, आप सूजी और बेसन का यूज ज्यादा कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटाज और ओट्स और ब्रांड का यूज कम करना है। साथ में ही प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। व्हाट इज प्रोटीन रिच डाइट? जो भी पेशेंट का ड्राई वेट होता है उससे डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर ड्राई वेट भी पेशेंट का बहुत कम होता है तो जो नॉर्मल का पेशेंट का वेट आ रहा है उससे हम डबल द अमाउंट उसको प्रोटीन इंटेक देते हैं। प्रोटीन रिच सोर्सेज क्या होते हैं? जो दालें होती है वो धुली हुई और टूटी हुई दालें देनी है, वॉश्ड एंड स्प्लिट पल्सेस। अरहर, मूंग धुली और मसूर की दाल इज मस्ट। तो ये 1 कटोरी 2 कटोरी दाल तो डेली पेशेंट को खानी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको लेना है राजमा चना लोबिया, दैट इज वंस इन ट्वाइस इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट। चिकन फिश डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी। आजकल कोविड-19 का टाइम है, कोई ला रहा है कोई नहीं ला रहा है, खा सकते हैं तो दैट इज गुड, नहीं खा सकते हैं तो एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, डाइटिशियन एडवाइस, टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स। यू कैन सजेस्ट और यू कैन टॉक टू द डॉक्टर्स कि अगर जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है उस केसेस में अगर उनको कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स चाहिए तो दैट इज वेरी मस्ट फॉर द डायलिसिस पेशेंट। पानी कम पीना है। पोटेशियम रिच चीजें जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, साग, पालक, बथुआ, धनिया, पुदीना या नींबू, खट्टी चीजें, ये सब कम खानी है। नमक का इंटेक बहुत कम करना है। जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अपने यूनिट्स में अभी खाने को लेके एक प्रिवेंटिव मेजर इन्फेक्शन के रूप में लिया है कि आप खाना किसी भी पेशेंट को अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप पेशेंट को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने घर से जो खाना खा के आ रहा है, दैट इज इन अ हेल्दी डाइट कंप्राइज्ड ऑफ चपाती, दाल, या जिस भी टाइम पे आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टाइम, जिस भी टाइम पे वो आ रहा है उसकी शिफ्ट है, उस टाइम पे वो खा के आए। लेकिन जाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ प्रोटीन रिच डाइट ले, सप्लीमेंट के फॉर्म में प्रोटीन ले या एग्स ले या कुछ भी पनीर का सैंडविच ले या कुछ भी ऐसा ले जो कि उनको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल ताज़ा बना खाना उनको सजेस्ट करना है। बहुत देर के कटे हुए फ्रूट्स वगैरह नहीं देने हैं। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है। WHO की जो भी गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी यही है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगी कोविड-19 के लिए, या आपको ये कहें कि कोविड-19 किसी भी डायरेक्ट चीज़ खाने से सही हो जाएगा, बट हाँ एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मोर यूज ऑफ गार्लिक, जिंजर, जो WHO की गाइडलाइंस में है। गार्लिक, जिंजर, आपका ब्लैक पेपर, हल्दी, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स। तुलसी पत्ता वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे सर ने बोला गर्म चीजें होती है वो नहीं खा सकते, तो उसके लिए बहुत डिस्कशन हुआ। तब उस केस में ये कर सकते हैं जो आजकल बहुत चल रहा है कि काढ़ा बनाते हैं, जैसे हल्दी का हो गया, लौंग का हो गया,
आपका दालचीनी का हो गया, जो सब 4-5 चीजें यूज करके हम जो काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े को आप बेसिकली 1 गिलास पानी में उसको ठंडा करके यू कैन जस्ट स्ट्रेन दैट वाटर, उस पानी को छान लीजिए और 1 लीटर उसमें पानी ऐड करके आप उसको रख सकते हैं। जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो डायलिसिस पेशेंट इवन अगर वो गर्म पानी से उसकी प्यास नहीं बुझती है तो ही कैन हैव अ सिप ऑफ दैट वाटर। ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली वो सब चीजें लेनी है, बट एट अ रूम टेम्परेचर ही और शी कैन यूज दैट थिंग। और अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस है या वो नहीं ले सकता है तो एटलीस्ट काले मिर्च का, जीरे का, हल्दी का, गार्लिक का, जिंजर का, इन सब चीजों का यूज खाने में ज्यादा कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट इन केस ऑफ सस्पेक्टेड एंड पॉजिटिव पेशेंट्स आर मस्ट। दैट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू डू कि आप उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल बढ़ा दें, एटलीस्ट 2.5 टाइम्स द नॉर्मल रिक्वायरमेंट। उस केस में उनके प्रोटीन सप्लीमेंट बेसिकली हेल्प करेंगे, दालें हेल्प करेंगी, पनीर 50 से 60 ग्राम डेली उनको डेली लेना है, दही 1 कटोरी डेली लेना है। मेक श्योर घर की सब बनी चीजें हो, बाहर से लाई हुई कोई भी चीज नहीं हो। लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत चीजें अवेलेबल भी नहीं है, तो उस केस में जो भी घर पे बना सकते हैं ताजा और फ्रेश वो खाना है। उसके साथ साथ जो पेशेंट्स की डाइट है उसके साथ आपको अपने लिए एज अ टेक्नीशियन क्या हेल्प करना है, क्योंकि जैसे जैन साहब ने कहा या सतेंद्र जी ने कहा कि हम तो अपनी सेफ्टी, पेशेंट्स की सेफ्टी कर रहे हैं, पर अपनी सेफ्टी भी मस्ट है, क्योंकि हमें भी इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट चाहिए। पता चले कि हम पेशेंट को ठीक करते करते और घर पे खुद ही बीमार पड़ गए तो कौन ठीक करेगा, या क्वारंटाइन हो गए हैं तो उस केस में क्या करें। सबसे पहली बात, मैंने बहुत से स्टाफ को देखा है जो कि घर से उठ के आ जाते हैं, ना ब्रेकफास्ट करते हैं, ना लंच साथ में लेके आते हैं, या कुछ नहीं खाते हैं ओवरऑल थ्रू आउट द 8 आवर शिफ्ट, सिर्फ चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ब्रिंग योर प्रॉपर मील्स, जो भी आप घर से बना के लाते हैं या जैसे भी आपको खाना है, आपके अगर आपको लगता है कैंटीन में प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं तो उस हिसाब से खाना खाइए। इन बिटवीन आपको अगर कुछ लगता है कि आप कुछ हेल्दी खा सकते हैं, समथिंग जो भी आप स्प्राउट्स है, कुछ भी है, अपने साथ लेके आइए, खाइए जरूर। आप लोग नॉर्मली विटामिन सी इन फॉर्म्स ऑफ लेमन या ऑरेंजेस या जो अवेलेबल आजकल चीजें हैं, मौसमी वगैरह, ये सब ले सकते हैं, बट सब कुछ घर का बना होना चाहिए, दैट इज मस्ट। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आप पता चले कि बाहर खड़े होके खा रहे हैं कि थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, भूख लग रही है तो खा लें, वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है अभी भी। इसके अलावा जो एक चीज और है कि अगर आप पेशेंट्स को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, खुद भी बहुत कर सकते हैं, या मैंने 1-2 लोगों को देखा है जो कि हाँ उनमें भी जिसे कहते हैं बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। जो आलमंड मिल्क होता है या हल्दी मिल्क होता है, जैसे डायलिसिस पेशेंट 1 कप दूध तक ले सकते हैं, तो उस केस में बादाम का दूध या हल्दी का दूध भी बहुत अच्छा है। वैसे भी उनको कैलोरी भी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा, तो दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर देम कि आप अपना 1 कप दूध अपने साथ बना ले या घर जाके पी ले या व्हाटएवर, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ साथ जो भी उनकी लैब रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी उनके मंथली वाइटल्स आ रहे हैं, जो भी उनके मंथली हेल्थ चेकअप्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ये न्यूट्रिशनल मॉनिटर्स जो लेवल्स है वो बहुत कम हो रहे हैं, तो उस केस में आप डॉक्टर से या जो भी अवेलेबल डाइटिशियंस हैं उनसे बात करके उनको फोकस कर सकते हैं। टेक्नीशियन वन शुड फोकस कि पेशेंट क्या ले रहा है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। टेक्नीशियंस को हमेशा ये गाइड करना है पेशेंट को कि वो घर पे क्या खा रहे हैं और कैसे खा सकते हैं। हर टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, हर टाइम डाइटिशियन अवेलेबल नहीं होगी, हर टाइम सीनियर स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा, बट आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है टू गाइड द पेशेंट कि वो क्या खा सकते हैं और क्या खा के आ रहे हैं, उसके बारे में आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं उनको सबसे ज्यादा। सो दैट इज द मेन थिंग। बाकी कुछ क्वेश्चन थ्योरीज। थैंक्स फॉर द इनपुट सलोनी। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इन सब चीजों से का मतलब ये नहीं है कि कोरोना ट्रीट हो जाएगा, आप कोरोना से बच जाएंगे। ये केवल इम्यून बूस्टर्स हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। वो वैसे भी कोरोना हो या नहीं हो, ये सब चीजें वैसे भी डायलिसिस पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। मेजर्स है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं। आप इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपका, इनफैक्ट आप कहोगे आपका फीवर भी कुछ ना कुछ रिलीव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई गाइडलाइंस जो कहते हैं बिल्कुल करेक्ट आई है, कोई ऐसे हेल्थ कुछ ऐसी कुछ भी टिप्स नहीं आई है जिससे कोई चीज कोविड-19 को ठीक कर सकते हैं।
एक सवाल आया है, we are referring some patients for COVID-19 test in our government hospital, but government hospital refused the patients for COVID-19 test. So tell me please what I can do next step for all staff and patients. हर एरिया में एक डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है जिसको कि डीएचओ कहते हैं. डीएचओ लगातार जो है आपके इन्फेक्शन कंट्रोल अस्पताल में जो भी इंचार्ज है, या वो नर्स है या वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उससे संपर्क में है, जिसके थ्रू आप एक्चुअली जब पॉजिटिव आता है तो आप डीएचओ को इन्फॉर्म करते हैं और एडिक्वेट एक्सपोजर और क्वारंटाइन मेजर्स लिए जाते हैं. डीएचओ बीच बीच में कैंप सेट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कितना हॉट जोन है या रेड जोन है या डायलिसिस यूनिट में कितने कितने कॉन्टैक्ट में आए हैं. डीएचओ से अगर आप बात करेंगे, संपर्क करेंगे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, तो मेरे ख्याल से ये जो नॉन टेस्टिंग की प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी. दिस इज द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ. अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो प्राइवेट सेक्टर में 4000 से 4500 के बीच में बड़ा सिंपल सा टेस्ट है. सेम डे रिटर्न अराउंड टाइम में मेरे ख्याल से सुबह देंगे, शाम तक रिपोर्ट आ जाती है अगर नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है 48 घंटे लग जाए रिपोर्ट आने में. पर अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट सेटअप में उनको नहीं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो डीएचओ को थ्रू उनकी सुनवाई हो जाएगी. डीएचओ एक लिस्ट भेज देगा कि इनका टेस्ट करना है, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते. और कोई सवाल है? Is absorption of calcium from milk reduced after a certain age in adults? Saloni, you'd like to take that or shall I take that? So you can take up on it. I cannot see the question. Absorption of calcium from milk is reduced after a certain age in adults. So that depends upon कि person अगर कैल्शियम ले भी रहा है तो वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है. ऐसा एज फैक्टर तो उसमें कुछ नहीं है, बट अच्छा, so my intake is input here is कि a lot of Indians get temporary lactose intolerance quite a bit over a period of time, and some of them become milk intolerant. So, and in that case, when they become milk intolerant, the calcium absorption from the gut will definitely go down. If that's not the case, I don't think age has got any direct relation with absorption of calcium from milk. Elderly, and my father drinks 2 glasses of milk now. Also, he's like 75. God bless him. So I think milk should be taken, and calcium is reasonably well absorbed as long as your gut is fine. Any more questions? There is one more. There is one more, which is saying read it out isolation room पे नहीं है तो आईसीयू में डायलिसिस कर सकते हैं क्या, अगर आइसोलेशन रूम नहीं है तो? जैन साहब, आप लेना चाहेंगे? कोई सही है सवाल कि मैं ले लूं? नहीं सर, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं. अच्छा, नहीं, आईसीयू में डायलिसिस नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर आप आईसीयू में डायलिसिस लेंगे, अगर हाईली सस्पेक्टेड पेशेंट है तो आप यू आर पुटिंग द होल आईसीयू एट रिस्क. और आईसीयू में यूजुअली सिक एंड डिहेबिलिटेड पेशेंट्स रहते हैं, अनलेस कि आईसीयू के अंदर एक डेफिनेट आइसोलेशन रूम बना हुआ है, जो कि हमारे आईसीयू में है. 2 अलग बने हुए हैं, 3 अलग बने हुए हैं. मेरे ख्याल से हर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में तो कम से कम 2 या 3 आईसीयूज हैं, और एक छोटा सा आईसीयू ईयर मार्क कर दिया हमने, जहाँ पे हम पॉजिटिव पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट्स को लेके डायलाइज करते हैं. बट देन इट्स अ डिफरेंट आईसीयू, इट्स नॉट अटैच्ड टू द मेन आईसीयू. आप मेन आईसीयू में नहीं ले सकते उसको. वो हॉस्पिटल की पॉलिसीज डिसाइड करेंगी, आपके एमएस और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं और इंटेंसिविस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं. पॉलिसीज हर हॉस्पिटल की अलग अलग है. Right. Thank you so much, sir. Before we end, we are already overshot the time. एक आखिर में मिस्टर सतेंद्र जी से एक रिक्वेस्ट आया है कि वो जो फॉर्मूला आपने हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के लिए, वो दोबारा कैमरा में थोड़ा सा शो करें. अभी सर, जो भी स्ट्रेंथ आपको चाहिए था इस फॉर्मूले से आपको बन जाएगी. जो अवेलेबल है आपके पास उससे चाहिए. थोड़ा और सामने लाना पड़ेगा मिस्टर शर्मा, आपको थोड़ा और कैमरा के नजदीक लाना पड़ेगा. ये ज्यादा नजदीक आ गया, थोड़ा पीछे. बस आई थिंक दैट शुड बी फाइन. या जनरली जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो 4% या 5% में आता है. तो रफली 200 ml आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड और 800 ml आपका आरओ वाटर अगर लेके आप बनाते हैं तो 1 लीटर बन जाएगा. उसी रेशो में आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और उसको आप यूज कर सकते हैं डायलिसिस यूनिट में डिसइंफेक्ट करने के लिए. काउंटर्स हैं, आपके टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, आपका जितना भी मशीन्स हैं, सब पे आप उसी से स्प्रे करके उसको जो है यूज कर सकते हैं. Thank you both. Thank you all the panelists. I would just like to, conclude, summarize that, after this pandemic, as healthcare professionals, we need to take care of ourselves so that we continue to serve. हम तब तक सर्व कर सकते हैं जब तक खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं first.
दूसरा कि there are इतनी सारी myths हैं, डॉक्टर अंबर touch on all those myths कि ये करने से ठीक हो जाएगा, वो करने से avoid हो जाएगा, but those are not really. We do not have a vaccine, we do not vaccine yet, we do not have a treatment yet. So हम hopeful हैं कि in the very short term हमें कुछ positive, कुछ इस तरह के results आएंगे ताकि then we are able to treat or maybe prevent these. Till that time, a basic basic hygiene, basic hand washing, what we have, already know about hand washing and the distancing, all that measures will be very effective. The importance of nutrition in building up immunity, and of course the practical tips आप लोगों ने जो share करा है, what to do, what not to do, and the use of PPEs, the use of hypochlorite solutions. So all of that will go a long way. How to improve and prevent the occurrence of COVID-19 within the dialysis centers while caring for your patients. So with that, I would like to thank all the speakers for spending the time and answering all the questions. And to all the audience for making it so interactive. Your questions were really appreciated. Thank you very much. Conclude here, just for a minute. Just conclude here. Thanks, Polymed, for bringing up such an important issue of COVID-19 and is trying to spread knowledge amongst these young dialysis technicians. Thank you for bringing the best of the team members. One who's taught me, like Mr. Jain Saab, one who's excellent, par excellence, Sharma ji. You've got very good two senior dialysis, probably the best in the country, I guess. You've got the best team here to teach these to teach these young dialysis technicians to transmit knowledge. And thank you, Saloni, for your dietary advice. And once again, thank you. Neeraj is not here; I can't see him. Thank you, Neeraj, for inviting me to actually run this webinar. Thank you, Polymed.